welcome to all. Today is yet another episode of the Mindspeak. Today, the subject is a transforming silver industry. We have a very interesting panel who has been I am moderating Nitin Khandelwal as a panel. First, let me introduce the panel. Sanjay Agrawal of RV Agrawal, Silversmith, Mumbai, COA, Silver Panel. In the GJC, manufacturing and wholesaler of the silver utensils and artifacts, and he is in this business from last 5 generation. Second है हमारे जयेश राठौड़, manufacturer and wholesaler of silver ornament, especially the payal, traditional and the branded. तीसरे हमारे पैनलिस्ट है आज करिश्मा मेहरा, proprietor and designer of jewelry, Bombay. He has been into the designing silver jewelry for the last 20 years, created a brand in the name of the jewelry, a specialist in the precious and semi-precious silver jewelry. Fourth हमारे आज के पैनलिस्ट है डॉक्टर कमल जहांगीर from श्री विश्वकर्मा ज्वेलरी हाउस खामगांव. Family business from last 6 generation, manufacturing the centers at the Khamgaon, Akola and Mumbai. Been into the silver articles, artifacts and manufacturing from the 125 years. Yogendra Garg, Derewala Industries, Jaipur, one of the largest exporter of the gold and silver jewelry across the globe. He has started he is having the art of state of the art manufacturing unit in the Jaipur. आज हमारे 6 young and dynamic panelist है तरंग अरोरा, Amrapali Jewels, Jaipur. Tarang is a creative director of the Amrapali Jewels, Jaipur. He has curated a sub brand Trivas Amrapali under his cap and deals in the luxury lifestyle product in the silver and the gold. आज हमारे सबसे एक्सपीरियंस पैनलिस्ट है राजू अरोरा जी, आम्रपाली ज्वेल्स, जयपुर. राजू अरोरा is a co-founder of the Amrapali Jewels. He has created a brand in the name of the Amrapali at the young age of the 21. Today he is the one of the known brand Amrapali from the being a jewelers. He is also an active and successful politicians leader. The company has recently launched a museum for the showcasing Indian jewelry, craftsmanship, research center, and also opened a Gurukul school of the design for the jewelry. So now we begin with the seminar, and I will start with a little background on the silver. Nitin bhai, before you start, I want to request all the speakers not to mute from your side. In case if you are muting from your side, I might lose the connect. So humble request not to mute from your side during the things. Otherwise, I have to keep on unmuting. A humble request to all of you. You can start, Nitin bhai. Yeah. Indian jewelry industry has been a phenomenal growth over the last decade. Silver jewelry demand has grown from the 700 tons in the 2010 to 2200 tons in the 2019. Silverware demand has grown from 500 tons to 1300 tons. Investment demand, including coin, and the grown from the 800 tons to 1700 tons. India today imports some of 5,000 to 6,000 tons of silver, despite of the domestic production of the 700 tons. 60% of the silver jewelry is from the payal. Strong growth witness of the 92.5 jewelry, which is still has only a 15% market share. Fashion jewelry is being demand drive for the days. Many branded retailers have started selling the silver jewelry. Silverware, 50% of the demand is a silver articles. There is a growing trend of the architects working with the silver fabrications also. मेरा साउंड आ रहा है ना सबको क्लियर? जी बिल्कुल. जैसे कि मैंने सबका पैनल का इंट्रोडक्शन किया है, सब बताया है. कुछ फैक्ट्स जो मैं एक चर्चा कर रहा था जब सब लोगों से, एक चीज समझ में आई कि जैसा वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल है, जैसा डीटीसी है, डायमंड में काम करता है,
प्लैटिनम में प्लैटिनम गिल्ड काम करता है। सिल्वर में जो एक कमी देखी है मैंने कि सिल्वर के अंदर ऐसा इंटरनेशनल काउंसिल जो है वो उतनी एक्टिव काम नहीं करती, अगर करती भी है तो इंडिया के अंदर उनका बहुत बड़ा कहीं पे स्कोप या रोल दिखा नहीं है, या अक्रॉस हम लोग एसोसिएशन में काम करते तो कभी मिलने का मौका नहीं आया। तो मुझे लगता है कि इसके अंदर बहुत बड़ा स्कोप है। आज हम लोग अपनी बात को शुरू करते हैं, क्योंकि आज के पैनलिस्ट के पास में कहने समझने सुनने के लिए बहुत बहुत कुछ है। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा राजीव जी से। राजीव जी, मैं सबसे पहले आपसे सुनना चाहूंगा कि आपने ये बिजनेस जो है ये कब से स्टार्ट किया है, और जब से आपने स्टार्ट किया है मार्केट में आपको क्या क्या चेंजेस दिख रहे हैं, और आपने एक्सपोर्ट भी स्टार्ट किया है, तो आपको क्या लगता है इस मार्केट के बारे में? मैं आपसे थोड़ा सा विस्तार से जानना चाहूंगा। ओवर टू यू राजीव जी। जी नितिन भाई, थैंक यू। और अशोक मीनावाला जी और अविनाश, ये जैमिन ज्वेलरी के लिए जो वेबिनार आप लोग कर रहे हैं ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है। और लंबी बात कह सकता हूँ मैं, लेकिन एक बात घर के अंदर है कि ये समुद्र मंथन हो रहा है, अमृत निकल के बाहर आएगा निश्चित रूप से आने वाले समय में, जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं। 1978 में मैंने मेरी पढ़ाई खत्म करने के बाद मैंने आई डिड माय पोस्ट ग्रेजुएशन इन हिस्ट्री, फिर मैंने MBA करा और MBA करते करते बिजनेस शुरू कर दिया। तो इट वाज ए फर्स्ट जनरेशन बिजनेस, और मुझे बड़ी खुशी है कि आज 40 साल बाद मेरे को अपनी जर्नी के बारे में आपके साथ शेयर करने का मौका मिल रहा है। तो क्योंकि जब शुरुआत के अंदर पैसे नहीं थे तो हैंडीक्राफ्ट के संग बिजनेस शुरू करा था, और अगले 2-3 साल के अंदर लगभग 1980-81 के अंदर मैं सिल्वर ज्वेलरी के अंदर आया, क्योंकि वही उस वक्त थोड़ा अफोर्डेबल बिजनेस हो सकता था मेरे लिए ज्वेलरी लाइन के अंदर। और 1982-83 में हमने पहली बार एक्सपोर्ट करना शुरू करा। बड़े डिफिकल्ट कानून होते थे उस जमाने में। आपको जब एक्सपोर्ट करते थे तो 33% हायर देन इंटरनेशनल प्राइस है, ये डिक्लेरेशन देना पड़ता था, उसके बाद आप एक्सपोर्ट कर सकते थे। तो फर्स्ट कुछ ईयर में एक्सपोर्ट हमारा शायद हजारों लाखों रुपए का रहा होगा, और पूरे जयपुर का भी। लेकिन खुशी की बात यह है कि आज की तारीख में सिल्वर ज्वेलरी के क्षेत्र में खासतौर से जयपुर एक्सपोर्ट में उसका बहुत बड़ा नाम हो गया है। और मेरे, चाहे वो आम्रपाली हो, चाहे वो गिरेवाला हो, योगेंद्र भी यहाँ पे हैं, और हम सब लोगों ने जो स्वच्छ शुरुआत करी थी, आज 50% ऑफ द कंट्री का सिल्वर ज्वेलरी का एक्सपोर्ट जयपुर से होता है। और हजारों लाखों कारीगर इसमें काम करते हैं। पहले 5 रिंग बनाने के लिए भी आपको कारीगर को बोलना पड़ता था, 1 हफ्ते बन के आती थी। आज हम लोग लगभग हजारों लाखों पीस हर महीने बनाते हैं। तो निश्चित रूप से ये सिल्वर ज्वेलरी एक बहुत छोटे से बिजनेस से बहुत बड़े सेक्टर में गया है। जयपुर वॉज नोन फॉर प्रेशियस जेमस्टोन्स, स्पेशली फॉर एमराल्ड्स, और जयपुर से कटिंग एंड पॉलिशिंग ऑफ स्टोन्स का काम होता था। लेकिन आज ज्वेलरी का जो काम होता है उसमें बहुत बड़ा रोल सिल्वर ज्वेलरी का है। और जैमिन ज्वेलरी काउंसिल के पिछले अगर आंकड़े देखें तो डायमंड और गोल्ड ज्वेलरी के बाद सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कोई चीज होती है तो सिल्वर ज्वेलरी होती है। तो निश्चित रूप से सिल्वर इज द न्यू गोल्ड, जिसको हमको सोचना चाहिए कि आने वाले समय के अंदर सिल्वर को हम आम आदमी तक पहुंचाएं। और मेरा हमेशा सोचना यह है कि जब हमने काम शुरू करा था तब मैं पुरानी ज्वेलरी को इकट्ठा करता था पूरे देश में से, उसको रीडिजाइन करता था अपने हाथों से, और वी क्रिएटेड अ न्यू लाइन ऑफ ऑक्सीडाइज्ड सिल्वर। क्योंकि जो पुरानी ज्वेलरी बनती थी उसकी डिमांड आई, बहुत सारे लोगों ने उसको ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी बनानी शुरू करी, तो अपने आप में एक बहुत बड़ा ऑक्सीडाइज्ड सिल्वर ज्वेलरी का मार्केट बन गया, जो कि बहुत फैशनेबल भी हो गया। तो मेरे ख्याल से सिल्वर ज्वेलरी आज की तारीख में रूरल इंडिया में जो पॉपुलर थी, क्योंकि चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे महाराष्ट्र हो, वहाँ पे गर्मी ज्यादा पड़ती है, लोग बाग चांदी की ज्वेलरी ज्यादा पहनते थे। गाँव में एक इन्वेस्टमेंट का एक बहुत बड़ा स्वरूप था। जब भी कोई बुरा जमाना आता था, मतलब कभी अकाल पड़ता था, बारिश कम होती थी, तो सिल्वर ज्वेलरी बेच के वो पैसे कमाते थे। लेकिन आज सिल्वर ज्वेलरी इन्वेस्टमेंट से फैशन की ओर जा रही है। सिल्वर ज्वेलरी आज हिंदुस्तान में बन के दुनिया के हर कोने में बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स पे जाके बिकती है। तो सिल्वर का एक यूज एज ए प्रेशियस मेटल के रूप में करना चाहिए, और सबसे सस्ता प्रेशियस मेटल है। सोने के मुकाबले आज की तारीख में 100 गुना सोना महंगा है। 1 ग्राम चांदी 40 रुपए ग्राम, तो सोना है 4000 रुपए ग्राम। तो प्रेशियस होते हुए भी उसकी क्वालिटी को देखते हुए सिल्वर ज्वेलरी को आगे बढ़ाया जा सकता है। और मेरे ख्याल से कोविड के बाद में
सिल्वर ज्वेलरी पे विशेष सबको ध्यान देना चाहिए, कि बात बहुत सारी होंगी, आगे प्रश्न भी आएंगे, थोड़ा पहले बैकग्राउंड बताने की कोशिश करिए। आपने एक्सपोर्ट कब से स्टार्ट किया है राजू जी? 1982। तो हाँ जी, तो क्या प्लेटफॉर्म 40 साल रहने लगे। हाँ, तो कौन कौन से कंट्री में आप अभी एक्सपोर्ट करते हैं? मैं इसलिए ये सब जानना चाह रहा हूँ ताकि और लोग इससे इंस्पिरेशन ले, जो हमारा मोटो है माइंड स्पीक का। जी जी नितिन भाई, मैं यूरोप में बहुत एक्सपोर्ट करते हैं हम लोग, और यूएसए में एक्सपोर्ट करते हैं निश्चित रूप से। शुरू में नॉन ट्रेडिशनल मार्केट में एक्सपोर्ट करते थे ज़्यादा, स्विट्जरलैंड है, जर्मनी है, बेल्जियम है, लेकिन अभी बहुत सारा काम यूएसए में होता है और यूके में होता है, कि यूके में हमारा ऑफिस है, यूएसए में हमारा ऑफिस है। और ये इस पूरे बेल्ट के अंदर सिल्वर काफ़ी पॉपुलर हो गई है। बीच में सिल्वर के दाम बहुत बड़े थे, उसके बाद से थोड़ा सिल्वर एक्सपोर्ट्स को धक्का लगा है और फैशन ज्वेलरी पॉपुलर हुई है, जिसमें ब्रास और कॉपर की ज्वेलरी बना के इसको सिल्वर या गोल्ड ट्रेड करके बेचने का समय आया है। लेकिन मेरे ख्याल से सिल्वर की एक अलग वैल्यू है, क्योंकि सिल्वर को फैशन ज्वेलरी से बांधते हैं, इसको हम हेयरलूम की तरह भी आगे दे सकते हैं। हम लोग अपने पुरखों से भी ज्वेलरी इकट्ठी करते रहे हैं, हमको मिलती है, आने वाले समय में भी इसका ऐसा क्रेज रहेगा। और सिल्वर पे जो मीनाकारी का जो काम हुआ है वो तो लाजवाब है, और इसीलिए जयपुर में हमने एक म्यूजियम बनाया है, आम्रपाली म्यूजियम। सिल्वर ज्वेलरी और आर्ट ऑब्जेक्ट उसमें रखे गए हैं। मेरे ख्याल से वर्ल्ड का लार्जेस्ट कलेक्शन है इस तरीके की ज्वेलरी का। आप में से कोई भी व्यक्ति कभी भी जयपुर आए तो आप उसका आके उसका लाभ उठाएं, क्योंकि वहाँ पे हम रिसर्च भी करते हैं, उसके ऊपर किताबें भी निकल रही हैं, उसका कैटलॉग भी निकला है। और हम चाहते हैं कि आने वाले समय के अंदर जो हमारे डिजाइनर्स हैं, जो स्कॉलर्स हैं, वो इंडियन क्राफ्ट्समैनशिप जो 5000 साल पहले शुरू हुई थी इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर आज तक की, सबसे ज्यादा हमको सिल्वर के माध्यम से देखने को मिलती है। क्योंकि आप छत्तीसगढ़ जाएं, रायपुर जाएं, आदिवासी इलाके में उड़ीसा में जाएं, आप साउथ इंडिया में जाएं, कर्नाटक के अंदर और तमिलनाडु में जो चांदी की ज्वेलरी पे जो काम हुआ है और जो विविधता है उसके काम की, वो किसी दूसरे मेटल में नहीं है। क्योंकि सोना महंगा होता है, आप उसमें एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। अब हम कर्नाटक में जाते हैं तो लिंगम मिलते हैं बहुत खूबसूरत, हम जाते हैं मध्य प्रदेश में जाते हैं तो बाजूबंद मिलते हैं, पनुआ मिलता है गले में पहनने का। महाराष्ट्र में मेरे को मालूम है नितिन भाई खुद बंजारों की ज्वेलरी के संग बहुत बड़ा काम करते हैं। उन्होंने देखा है कि जो आदिवासी लोग पहनते हैं कलरफुल कपड़ों के साथ ज्वेलरी बड़ी सूट करती है। और जब एक किसान खेत में जाके काम करता है तो वो गोल्ड की ज्वेलरी काम में नहीं लेके सिल्वर की ज्वेलरी पहन के जाता है, और इतनी बड़ी तादाद में पहनता है क्योंकि उसको लगता है कि मेरे शायद घर पे जहाँ पे जो कच्चा घर होता है उसमें सुरक्षित नहीं है। तो सड़क पे काम करते हुए आप लोगों को हाथ के बड़े बड़े चूड़ और बाजूबंद पहने हुए देखेंगे पूरे गुजरात में, महाराष्ट्र में, और फील्ड्स के अंदर काम करते हुए राजस्थान में बड़े पाँव के अंदर कड़े पहनते हैं और ज्वेलरी पहन के काम में लेते हैं। तो ये आपको जो सिल्वर ज्वेलरी है न केवल सुरक्षा प्रदान करती है आर्थिक रूप से, स्त्री धन के रूप में काम आती है, और जो आपके इन्वेस्टमेंट है भविष्य में आपके पास अगर जब मौका पड़ता है, घर में कोई शादी होती है, कोई ब्याह होता है, तो उस वक्त भी इसको आप काम में ले सकते हैं, इसको बेच के या रिसाइकिल करके। लेकिन अनफॉर्चुनेट बात यह है हिंदुस्तान की सिल्वर ज्वेलरी में हमारे कभी हॉलमार्किंग नहीं हुई, तो हमको मालूम नहीं पड़ता कि किस एज में किस पीरियड में क्या चीज बनी। विदेशों में खास तौर से हॉलमार्किंग का काम शुरू हुआ। आप पता कर सकते हैं कि मैनचेस्टर में कब कौन सी चीज बनी, कौन से साल में बनी, उसके बनाने वाला कौन था, ये हमारे यहाँ नहीं हुआ। और दूसरा, बहुत अद्भुत पीसेस जो कारीगरी के थे उनको मेल्ट कर दिया गया, उनको रिसाइकिल कर दिया गया। जब मैंने मेरा बिजनेस शुरू करा तो मैं कैलीकट में गया, 1984 की बात है। मैंने देखा कि लोग बैलगाड़ी के अंदर भर के पुरानी ज्वेलरी को लेके आ रहे हैं, बोरों में भर के, उनको उसको हैमर करके तोड़ के रिसाइकिल करने के लिए। तो मैंने उनसे कहा कि आप इसको गलाओ मत, मैं इसमें से पुरानी चांदी ढूंढूंगा। तो उनको पुरानी चांदी का क्या करेंगे? तो हमने कहा कि आपको गलाने से जो पैसे मिलेंगे उससे ज़्यादा पैसे देंगे। और इस तरीके से साउथ इंडिया में हम लोगों ने एक शुरुआत करी कि लोग बाग गलाने से पहले उन लोगों से पूछें जो पुरानी चांदी का कलेक्शन करते हैं। तो मेरे ख्याल से ये हमारे इतिहास को जानने का एक बहुत अच्छा तरीका है। इससे ये भी मालूम पड़ता है कि आप किस जाति के हैं, ये भी मालूम पड़ता है कि आप मीणा हैं, कि आप गुर्जर हैं, कि आप भील हैं, किस तरीके की आप ज्वेलरी पहनते हैं, किस
प्रांत से आप आते हैं, किस प्रदेश से आप आते हैं। और उसके अलावा जब आप फसली पहन के निकलती हैं औरतें, पानी लेके, पानी का घर सिर पे घड़ा लेके, तो उनका जो पोस्चर होता है वो भी गजब का होता है। तो जो सिल्वर की जो ज्वेलरी बनी है वो आपके शरीर के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभकारी है, ये हमको समझना चाहिए। उसको बनाया भी इस तरीके से किया है। जो कानों में पियर्सिंग करते हैं, नोज के अंदर पियर्सिंग करते हैं, ये सब चीजें हमारे प्रेशर पॉइंट्स हैं, जिनको पियर्स करके अगर आप वहाँ पे ज्वेलरी पहनेंगे तो आप बहुत सारी बीमारियों से दूर रह सकते हैं। तो सिल्वर ज्वेलरी का न केवल हमारे जीवन में एक सुंदरता के अंदर महत्व है, बल्कि इसका हमारे रिचुअल्स में, और हर ज्वेलरी के पीछे कोई ना कोई स्टोरी है, कोई ना कोई कहानी है। बिना कहानी के कोई पानरी नहीं बनती है, बिना कहानी के लिए कोई बोरला नहीं बनता है। हर चीज के पीछे कुछ न कुछ कहानी है, बहुत कुछ उसमें अध्ययन करने के लिए। तो ये सिल्वर का जो जो पूरा जो संसार है वो बहुत खूबसूरत है। और हम जब भी कभी अंधकार में पहुंच जाते हैं, जैसे कोविड के अंदर भी पहुंचे हैं, तो लोग उम्मीद करते हैं कि सिल्वर लाइनिंग दिखे, हमें तो सिल्वर लाइनिंग दिखे, एक चांदी की एक चमक दिखे, जो कि चांद से निकली है चांदनी, जो हमको कोमलता प्रदान करती है, शीतलता प्रदान करती है। तो मेरे ख्याल से आज जो जो विषय है ये निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके ऊपर जैसे नितिन भाई कह रहे थे, हम सब लोगों को आगे बढ़ के सिल्वर को कैसे प्रमोट करा जाए, इस विषय में कोई ना कोई एक गिल्ड बनानी चाहिए या कोई एक एसोसिएशन बनानी चाहिए, और उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर हिंदुस्तानी कारीगरों को ले जाने का एक बहुत बढ़िया मौका इससे हमको मिल सकता है। जी राजीव जी, आपने मेरे काफी सारे सवाल, जैसे आप अंतर्यामी हैं, आपने काफी सारे सवाल मेरे इसमें कवर कर लिए, मेरा जॉब काफी इजी कर दिया आपने। जैसा कि आपने ट्रेडिशन का बताया, पुराना बताया, मुझे भी पता है कि जब मोहनजोदड़ो की जब खुदाई हुई थी और उसमें जब मूर्तियां निकली तो आंख पे कपड़े कम निकले, लेकिन सिल्वर ज्वेलरी उनके ऊपर निकली 1700-1800 साल पुरानी, और वो भी बहुत अच्छी खूबसूरत डिजाइन के अंदर वो निकली। जैसा आपने एक ट्रेडिशन का बताया, सब बताया, वैसे मैं डॉक्टर जो कमल है, कमल जांगीड़, जो कि अकोला और खामगांव में भी इनके यूनिट है, इन्होंने मुंबई में भी लगाया है। मैं कमल आपसे जानना चाहूंगा, आप 6 जनरेशन से इस बिजनेस में है और निरंतर आप इसको बढ़ा ही रहे हैं। कई बिजनेस ऐसा बोलते हैं कि सिंक हो रहा है और मुश्किल है करना, और मुझे ये भी पता है जब मैं आपसे इंटरेक्शन करता हूँ कि आप अभी इंडस्ट्रियल सिल्वर के अंदर भी आप काफी आपने एंट्री लिया और काफी चीजों को आप करते हैं। तो ये काफी लोगों को ये पता नहीं है कि सिल्वर इंडस्ट्रियल यूज भी सुना है, लेकिन पता नहीं कि कैसे यूज होती है। तो मैं चाहता हूं कि आप मंदिर से लेके तो मैन्युफैक्चरिंग जो आप करते हैं वो दोनों के बारे में आप थोड़ा बताइए। Thank you, Nitin bhai. Good afternoon and thanks for getting me here on this platform. Thank you to all the panel friends. See, starting from a very small amount by wife of Keshuram Jangid in a fringe from a native and used in the silver business done manually, it saw a miraculous growth over a span of 135 years to setting up a mechanized factory and achieving a turnover of $1 billion per annum. So this has been interesting history behind this. The business grew from nowhere to everywhere and has earned its own brand nationally. All this was possible though I being located at a very small taluka place, which has a population of not more than 1.5 lakhs of Khamgaon, by sincerely observing some ethical practices in this business, which is honesty, number 1. Number 2 is integrity. Number 3 is purity. Number 4 is righteousness. And number 4 is workmanship. This is also mentioned in a book which has been recently published in 2020. And the topic is Iron Man of Silver World. It is a case study done by Bidla Institute of Management and Shegao Institute of Management on Vishwakarma Silver House. And it is under teaching program for MBA syllabus. So what factors are needed for Your voice is gone. transforming silver
business, what we practice in our day-to-day showroom is it you are able to hear me now? अमन जी थोड़ा हिंदी में बोलेंगे तो लोगों को और मजा आएगा. I'll try. I'll surely try. Are you able to hear? Very clearly. अच्छा. So the factors what we practice in day to day हमारे जो शॉप में हम जो practice करते हैं उसमें number one is trust and integrity. That is first thing. We should build a strong trust with our customers by giving them hallmarked utensils and jewelry only, and with guaranteed buyback policy and minimum rate difference. The second thing comes is purity. अपना हिंदुस्तानी लोग आपको पता ही होगा कि सभी प्योरिटी कॉन्शियस है. पहले जब शोरूम में आते हैं सबसे पहले पूछते हैं इसका टंच क्या है, इसका प्योरिटी क्या है. So we must set some standards in our day-to-day practice for silver articles and utensils should be not less than 92.5% to 100%. Jewelry should not be less than 85% and it can go up to 92.5% pure. Coins should always be 100%. Cutlery and other articles may be of 92.5%. So in 92.5% अपन जो add करते हैं, it should not be a toxic material like cadmium, nickel. Its use should be avoided, and it is banned worldwide also. Then timely upgradation by using the technology. We must upgrade in designs and material innovation. फिर टेक्नोलॉजिकली अपग्रेडेशन जैसे यूज ऑफ CNC मशीन्स अपन कर सकते हैं फॉर एक्यूरेसी एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी. देन यूज ऑफ लेजर मशीन्स अपन यूज कर सकते हैं फॉर एनग्रेविंग, CAD मशीन्स फॉर मॉडल मेकिंग, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग मशीन टू रिप्लेस primitive clay casting. This what we are doing in our day-to-day business, which I manufacture. Then silver designers to assist, and skilled labor should always be promoted. And they should be well-trained artisans available. So we may also have a school or teaching programs for them. फिर इसके बाद में आता है promotion. We should promote, educate customers to use silver utensils by sharing its investment value. Properties like we must mention उसका जो properties है धातु का, antibacterial है, antiviral है, antifungal है. It is also used in purification of water. So pictures, glass, excessive use of silver products. फिर इसके बाद में सिल्वर ज्वेलरी और सिल्वर गिफ्ट प्रोडक्ट के लिए अपने शोरूम के अंदर एक्स्ट्रा जगह देके उसको प्रॉपर डिस्प्ले करके उसका सेल में बढ़ोतरी कर सकते हैं. फिर प्रमोशन बाय मींस ऑफ डिजिटल सेल, एग्जीबिशंस, and we must have a separate council also for this. Now coming to industrial silver. Industrial silver amounts to about 22% in India. 22% of the consumption of silver goes into industrial products, and worldwide it goes up to 60%. See, silver has a property of it is ductile and easily malleable. धातु है ये, तो इससे वायर खींचने में, शीट बनाने में बहुत आसानी होती है. That is why it is often used in industries. So uses in electronics, इसका अगर यूज देखो उसका कारण है कि इसके 100% इसमें कंडक्टिविटी है. It is also used in brazing alloys and solders. Hard solders are done by mixing different alloys, copper in it. Then other silver products जैसे जरी और फाइल जिसका इंडिया में बहुत यूज होता है. Then we also have dental silver. It is also used in mirror photography. Its consumption post-COVID may rise to multiple fold as it is widely used in 5G spectrum जो अभी चालू कर रहे हैं. इसके अंदर इसका बहुत ज्यादा कंजम्पशन सिल्वर का होने वाला है. इसके लिए
इजी डाउनलोडिंग और स्ट्रीमिंग प्रोसेस के लिए ये बहुत जरूरी है। फिर इसके बाद में इसका मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी है। इट इज यूज्ड वाइडली in the nano silver particles are used in medicines which are meant for burns, eye drops. Then we have colloidal silver solutions which are used as an immunity booster also, और ये FDA approved है। Thank you नितिन भाई। बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन कमल तुमने दिया। सिल्वर नाइट्रेट बोला जाता है जो बर्न के अंदर यूज की जाती है, और अपने मेडिकल से लेके सभी चीजों को कवर किया है। अभी तो हम दो अलग अलग सब्जेक्ट पे बात कर रहे थे, इंटरनेशनल ट्रैवल सबके ऊपर, इंडस्ट्रियल यूज पे। अभी हमारे साथ ब्यूटीफुल लेडी है करिश्मा, और कल मैं जब इनसे बात कर रहा था तो मुझे बहुत इंटरेस्ट आया, क्योंकि सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आया कि प्रॉफिटेबिलिटी है, ग्रोइंग है, सेलिब्रिटी वैल्यू काफी बढ़ गई है, और जो ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग का जो अप ट्रेंड है। तो मैं करिश्मा आपसे जानना चाहूंगा, एक तो पहली बात तो ये मुझे पता है, मैं आपके फैमिली को जानता हूँ, आपके फैमिली में तो गोल्ड का बहुत बड़ा काम है, आपकी ब्रांचेस भी है, और गोल्ड की कोई कमी भी नहीं है बिजनेस के अंदर। उसके बावजूद तुमने अचानक सिल्वर के अंदर अपनी एंट्री लिया, और आप क्या करते हैं और क्या मैसेज देना चाहेंगे इंडस्ट्री को लर्निंग के लिए? गुड आफ्टरनून सबको। मैं जरूर हिंदी में जितना हो सकेगा बोलूंगी। सब मैसेजेस भेज रहे हैं कि प्लीज हिंदी में बात कीजिए, और करना भी चाहिए, बट कहीं कहीं इंग्लिश आएगा तो उसके लिए प्लीज बेयर कीजिए। जो सब वेबिनार अटेंड कर रहे हैं, और रेगुलरली मैं देख रही हूँ कि इतने लोग रोज अपना दोपहर का टाइम निकाल के आ रहे हैं, उनको बहुत बहुत थैंक यू। और जो इतने एमिनेंट स्पीकर्स के साथ मुझे आज मौका मिल रहा है सेम स्क्रीन पे आने का, वो भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैंने 20 साल पहले, जस्ट व्हेन आई वाज 22, मैंने सिल्वर ज्वेलरी CZ के साथ डिजाइनिंग करके एक काफी बड़े लेवल पे 20 साल पहले मैंने स्टार्ट किया। हमारी फैमिली बुलियन में थी, मेरे फादर इन लॉ भी बुलियन में है, अभी भी मेरे हस्बैंड गोल्ड ज्वेलरी बुलियन में है। और उस टाइम से भी मैंने ये नहीं सोचा कि मुझे गोल्ड में जाना चाहिए, क्योंकि कारण ये था कि सिल्वर बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंटल मेटल है। आज मुझे कुछ भी बनाना है, कास्ट करना है, एक्सपेरिमेंट करना है, बहुत कम वैल्यू में मैं उसको अचीव कर सकती हूँ। जब उस टाइम पे हमने स्टार्ट किया, मुझे लोग बोलते थे कि 20,000 का आप सिल्वर इयररिंग कैसे बेचेंगे 1999 में, 2000 में। तभी भी मुझे कॉन्फिडेंस था कि 20,000 का सिल्वर इयररिंग 2 लाख के इयररिंग को कहीं ना कहीं मैं मैच कर पाऊंगी मेंटली। तभी वो ट्रेंड चेंज करना डिफिकल्ट था, बट आज वो 20,000 का इयररिंग बेचना बहुत ही इजी है हमारे लिए। और कहने का मतलब है कि सिल्वर बुलियन है, मतलब वो अभी भी अंडररेटेड बुलियन मेटल है, और उसमें जो टेक्नोलॉजी आ गई है, इतनी सोफिस्टिकेशन आ गई है। पहले जो राजीव जी ने बताया बहुत इंटरेस्टिंग चीज के, इतनी अल्टीमेटली हम वही मशीन यूज कर रहे हैं गोल्ड के लिए जो हम सिल्वर के लिए यूज कर रहे हैं, और आप मशीन में क्या डालते हैं, उससे क्या निकलता है, वो अल्टीमेटली आपके माइंड के ऊपर है। तो आपका जो डिजाइन है, आपका जो माइंड है, वो मशीन से आप क्या बना सकते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। तो सिल्वर हो या गोल्ड हो, अगर आपका एंड रिजल्ट अच्छा आ रहा है तो इट इज वेरी इजी टू मेक द राइट प्रोडक्ट which will be appealing to everyone, be it silver or gold. So I thought it would be very easy to use silver and start, and I don't regret my decision because I'm very happy. It is a very it's growing, and we are getting very good margins, and it's not easy to set yourself, but it is an amazing line if anybody would like to start. Another thing I would like to say कि जब आप 200 ग्राम का डायमंड का सेट बना रहे हैं, और लोग इतनी ज्यादा लेबर पे कर रहे हैं 100 ग्राम्स डायमंड के सेट के लिए या 200 ग्राम्स डायमंड के सेट के लिए, तो जब मेरे पास एक कस्टमर आता है, हम CZ भी करते हैं, ट्रेडिशनल भी करते हैं, कुंदन के साथ भी 9 to 5 सिल्वर करते हैं, पोल्की के साथ भी करते हैं। जब वो कस्टमर आके बोलता है कि आप ये 50,000 का सिल्वर में बेच रहे हैं, और मतलब मेरे को वो 25 लाख में मुझे इतनी ज्यादा लेबर लग रही है वो 200 ग्राम के सेट के ऊपर डायमंड्स में, तो कहीं ना कहीं वो एक शिफ्ट हो गया है माइंडसेट।
कि वो 50,000 में मुझे ना ब्रेकअप देना पड़ रहा है, ना ग्राम वेट देना पड़ रहा है, क्योंकि लेबर इतनी हाई हो गई है डायमंड ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग की कि सिल्वर विद सीजेड या सिल्वर विद स्वरास्की या सिल्वर विद कुंदन बहुत इजीली बिक रहा है. So I think it's a very growing market, and if the right design, right technique is applied, it is very easy. The other thing is design is very, very important in our retail of jewelry of silver. In the silver, design plays a very important role. We have to be very, very sharp. गोल्ड ज्वेलरी में क्या होता है कि किलो का काम होता है, और आप अपना ब्रेड एंड बटर आइटम ज्यादा स्टोर कर सकते हैं, आप चेन्स और बैंगल्स. और हमारी लाइन में हमको बहुत शार्पली डिजाइन पे ध्यान देना पड़ता है. अगर डिजाइन कहीं ना कहीं फॉल्टर कर जाए तो आप रिटेल सेल नहीं कर सकते. मतलब दूसरी चीज जो बहुत ज्यादा सबको ध्यान देना चाहिए वो ये है कि अगर आपने कोई रॉन्ग या आउटडेटेड चीज में इन्वेस्टमेंट कर ली तो आप वो ना, अगर आप दुबई में बेच रहे हैं या नागपुर में बेच रहे हैं या इंदौर में या अमेरिका में, कस्टमर इज वेरी शार्प. आप किसी जो आपकी चीज नागपुर में नहीं बिक रही वो अमेरिका में नहीं बिकेगी, जो अमेरिका में नहीं बिक रही वो इंदौर में नहीं बिकेगी. सबको लेटेस्ट ट्रेंड्स का इतना ज्यादा आइडिया है कि आपको बहुत शार्पली अपना रिटेल प्रेजेंट करना है. सो यू नो इट इज वेरी इम्पोर्टेंट कि आप राइट डिजाइन को राइट वे में प्रेजेंट करें. इसमें डेड स्टॉक काफी हो जाता है, हम वो मेल्ट करके नहीं, आप वापस नहीं निकाल सकते जैसे सोने में कि चलो मेल्ट कर दो ये नहीं चल रहा. वो चीज हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाती है, इसलिए हमको फ्रॉम बिगिनिंग से वो डिजाइन पे बहुत ध्यान देना पड़ता है. जस्ट अगर कोई भी रिटेलर्स मतलब ये कॉन्सेप्ट को मतलब समझ पाए तो बहुत हर ये वो डेड स्टॉक, इतना अवेयरनेस थ्रू मोबाइल थ्रू इंटरनेट, इतनी ज्यादा अवेयरनेस है कि आप जो डेड है वो डेड हो जाता है. हमारी लाइन में काफी चीजें कुछ हद तक बहुत समय तक नहीं बिक पाती, और इट्स ओनली बिकॉज सोशल मीडिया बहुत पावरफुल हो गया है. दूसरी चीज ये है कि आप बहुत ज्यादा जो अगर आप ब्रांडिंग करें अपने कोई भी, अब यूटेंसिल्स का बिजनेस हो या डिजाइन का बिजनेस हो, ज्वेलरी रिटेल का हो, होलसेल का हो, बहुत ही ज्यादा जरूरी है सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया मार्केटिंग. बिकॉज सब कुछ, आप गांव में चले जाओ या कहीं पे भी चले जाओ, सबके पास मोबाइल है, सबको ऑनलाइन जाके सब चीज ढूंढना आ गया है. तो जो लोग अभी भी ये सोचते हैं कि अगर मैं ऑनलाइन चली गई तो मेरा वो कॉपी हो जाएगा या लोग देख लेंगे, आई थिंक वो चीज हमको टोटली बदल देनी है. अगर हम ऑनलाइन जाके अपने आप को, हमारा जो प्लस पॉइंट है, इनफैक्ट मैं बहुत ही ज्यादा तरंग जी के जो ट्राइब बाय अम्रपाली का कलेक्शन है, मैं बहुत ज्यादा उसको अप्रिशिएट करती हूँ, और जिस हिसाब से वो ऑनलाइन उसकी मार्केटिंग करते हैं, मतलब बहुत ही काबिले तारीफ है. और इट्स अमेजिंग कि वो इतना ज्यादा ब्रांडिंग कर रहे हैं उसको, और इसीलिए कहीं ना कहीं वो डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, हर एक बिजनेस को अल्टीमेटली अडेप्ट करना पड़ेगा. ये सब चीजें थोड़ी मैंने जो देखी हैं. और करिश्मा, मैंने देखा है कि तुमने बोला कि जब डिजाइन कुछ बिगड़ जाती है, सब होती है, और मैं राजीव जी को सुन रहा था, उन्होंने बताया था कि जो पुरानी ज्वेलरी को लेके आते थे और उसमें से न्यू इन्वेंशन करते थे. मैं पिछले 40 साल से ज्वेलरी लाइन में हूँ. जब कोई मैं देखता हूँ कि कारागिर कोई ऐसी चीज बना के लाता है जो थोड़ी डिफरेंट लुक है, उसकी नजर में बिगड़ गया, और मैंने इसका ऐसा प्रयोग किया है कि इसको मैं डिजाइनर ज्वेलरी करके सामने ले जाता हूँ, क्योंकि वो यूनिक पीस होता है, और कोई तो उसको डिजाइन बिगाड़ नहीं सकता है. यहाँ मेरा कहने का मतलब ये है कि जब हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, जैसे कि डिजाइन तो सब ठीक है, आपकी नजर में जो अच्छा है वो मेरी नजर में शायद ना हो, वो एक अलग चीज है. मैं ये बोल रही हूँ कि अगर 12 डिजाइन हैं और 8 बिक रहे हैं, तो 4 डिजाइन अगर हमारे नहीं बिकते, और हमने तो 12 पीस वो 4 के भी बनाए हैं, तो ये जो सिल्वर की मैन्युफैक्चरिंग है बहुत अलग तरीके से होती है. जो गोल्ड है वो आप सिंगल या यू नो ये टेक्निकली आजकल बहुत कुछ मशीन्स पे हो रहा है. तो अगर आपके 4 डिजाइन फेल हो जाते हैं ग्लोबली और 8 डिजाइन चल जाते हैं, तो हमको बहुत ध्यान से वो मतलब ध्यान देना पड़ रहा है कि हम कौन से डिजाइन, मतलब थोड़ा शार्पनेस, यू नो. यस मैं समझ गया. ऑफ कोर्स पुराना तो एवर गोल्ड है, ओल्ड इज गोल्ड, वो तो रहेगा ही. मैं बोल रही हूँ कि अगर हम 12 पीसेस की कलेक्शन बनाते हैं और 4 नहीं चलती,
तो वो कहीं नहीं चलेंगी। अगर अमेरिका में नहीं चल रही तो इंदौर में भी नहीं चलेंगी, ये मेरा कहने का मतलब है। गॉट योर पॉइंट। आपने तरंग का नाम लिया है, मैं भी एक्साइटेड हूँ तरंग जी से सुनने में। मैं तरंग जी आपसे जानना चाहूंगा कि सिल्वर ज्वेलरी इन इंडिया इज मोर ट्राइबल, मोर ट्रेडिशनल और मोर मॉडर्न? आपको क्या आपका एक्सपीरियंस है कि ये आदिवासी है, पारंपरिक है या आधुनिक है? तरंग, ओवर टू यू। थैंक यू नितिन जी आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। Tarang, I I think Tarang, you. if you can switch off जो your आप बोल रहे हैं वो आई थिंक डिपेंड करता है कि किस एरिया के लिए। हेलो तरंग जी आप या तो फिर पापा के रूम में आ जाइए, आपका वॉइस नहीं आ रहा है। अब बेटर है? Yeah, थोड़ा बेटर है सर, थोड़ा बेटर है। Just use a earphone, it will be better, I feel. I don't have my earphones with me right No, now. it's okay. no, After okay, your okay. video is off, you're much better. Okay, so मैं thank you for having me नितिन भाई and everyone. जो मैं आपने जो पूछा कि क्या चीज सिल्वर इंडिया के अंदर चलती है, क्या चीज देखने के लिए मिलती है ज्यादा हमको, आई थिंक बीइंग वेयर वी आर, जो ब्रांड है, जो आम्रपाली का नाम है, जो ट्राइब आम्रपाली जो हमारा ब्रांड है जो हमने चालू किया है, हम लोगों का आइडिया, हमारा जो बेस है वो डेफिनेटली बीइंग वेरी ट्राइबल, तो हम डेफिनेटली वी लुक एट मोर ट्राइबल और हमने उसी के ऊपर ज्यादा काम चालू किया है। अगर आप हमारा ब्रांड भी देखेंगे, जो नाम भी है वो ट्राइब है, उसके लिए भी हमने इसको इस तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश करी है कि ये एक ट्राइब है, ये एक क्लैन है लोगों का जो सारे के सारे इस सेंसिबिलिटी को समझते हैं, उसको लाइक करते हैं, उसकी ज्वेलरी वेयर करना चाहते हैं, उस प्रोडक्ट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं और उसको अप्रिशिएट करते हैं। तो वो ये हमारा आइडिया था ट्राइब के लिए, और यही हमारा आइडिया है कि ट्राइबल ज्वेलरी को हमको और स्ट्रॉन्ग करना है कमिंग फ्रॉम ट्राइब। आगे चलने के अंदर हमको डेफिनेटली मॉडर्न ज्वेलरी का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है एंड ट्रेडिशनल ज्वेलरी का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। हम जो अब मेनली देख रहे हैं इन द लास्ट मे बी 4-5 years, डेस्टिनेशन वेडिंग्स इतनी इंपॉर्टेंट हो गई हैं, लोगों के लिए सोशल मीडिया इतना इंपॉर्टेंट हो गया है, हर जना चाहता है कि वो फेस्टिवल के टाइम पे, दिवाली के टाइम पे, दुर्गा पूजा के टाइम पे वो बाहर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, अपने डिनर्स पे जाते हैं, पार्टीज में जाते हैं। वो चाहते हैं कि वो हर बार जो सोशल मीडिया पे पिक्चर डालें वो एक नई तरीके की ज्वेलरी की हो। उस पीरियड के अंदर हम एक ट्रेडिशनल ज्वेलरी के अंदर डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग अपलिफ्टमेंट देखते हैं। हम ये भी देखते हैं कि उस टाइम पे क्लाइंट ये सोचता है कि मैं 2 लाख रुपए का एक झुमका गोल्ड का खरीदने की जगह 10 झुमके खरीदूं 20,000 के और उनको 10 टाइम पे अलग अलग जगह पे पहनूं, कम से कम मेरे पास वैरायटी आएगी, एक फैशन सेंस है, और उसको मैं सोशल मीडिया पे डालूंगी, मैं अपनी चीजों को, अपनी ज्वेलरी को रिपीट नहीं कर रही हूँ। इस तरीके की माइंडसेट से हमको सिल्वर ज्वेलरी एंड ट्रेडिशनल ज्वेलरी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हुई दिख रही है। मैं अभी रिसेंटली एक जगह पढ़ भी रहा था कि 2018 में 16% सिल्वर का कंजम्पशन इंडिया के अंदर बढ़ा है। मल्टीपल रीजंस हैं इनके, एंड मुझे ये लगता है कि हर सेगमेंट ट्रेडिशनल, ट्राइबल, मॉडर्न अपनी अपनी जगह रेगुलरली बढ़ रहा है, डिपेंडिंग किसको क्या लेना है। एंड हमारे पास इतने ही प्लेयर्स हैं मार्केट के अंदर, रेगुलरली ग्रो कर रहे हैं, रेगुलरली नए ब्रांड्स आ रहे हैं, और रेगुलरली जो हमारी क्लाइंटेल है वो डेफिनेटली ज्यादा अवेयर होती जा रही है। जैसे करिश्मा जी कह रहे थे कि कोई छोटे से टाउन में भी बैठा है, छोटी सिटीज में भी बैठा है, या कोई दुबई या न्यूयॉर्क या अमेरिका में बैठा है, वो सब ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं, वो सब ऑनलाइन सोशल मीडिया एक्सेस कर सकते हैं, एंड डिपेंडिंग ऑन व्हाट दे वांट वो उस चीज को, उस प्रोडक्ट को आज खरीद रहे हैं। वेरी ट्रू, आपने बहुत अच्छा इंसाइट दिया है और सब्जेक्ट भी बहुत अच्छे कवर हो रहे हैं। मैं आगे चल के योगी जी से जानना चाहूंगा। योगी जी पहले तो तैयार नहीं हो रहे थे आने के लिए, बोले मैं तो काम करता हूँ, स्पीकर नहीं हूँ, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। योगी जी आप आए, आपने बांध रखा। योगी जी आपसे जब मैं बात कर रहा था तो आपने बताया कि काफी इंटरनेशनल आप वेबिनार सेमिनार्स भी अटेंड कर रहे हैं, आपके इंटरनेशनल पार्टनर के साथ आप टच में हैं, और आपका तो यूनिट मैंने खुद देखा भी है, स्टेट ऑफ द आर्ट यूनिट है। क्या आपको लगता है फ्यूचर ज्वेलरी इंडस्ट्री का और खास करके सिल्वर इंडस्ट्री का और जो आपके इंटरनेशनल पार्टनर है
उनका क्या कहना है आप लोगों को, और क्या आप जिस टाइप के सेगमेंट में है आपको उसका फ्यूचर क्या लगता है? जी नितिन जी, जैसे अभी अपन ने जितनी भी मीटिंग्स की ना, तो उसमें ये है कि सिल्वर का फ्यूचर तो इंटरनेशनली अच्छा है। अब थोड़ा जोर से बोलिए, वॉइस क्लियर है पर थोड़ा जोर से बोलिए। हाँ, इंटरनेशनली फ्यूचर अच्छा है। इट विल टेक एटलीस्ट 3 to 4 months टू गेयर अप, लेकिन बिजनेस सब लोग पॉजिटिव हैं। दे आर वर्किंग फॉर इवन लाइक डेवलपमेंट ऑफ 2021, और अभी भी वो बिजनेस अच्छा देख रहे हैं। थोड़ा गोल्ड पे हिट देख रहे हैं, बिकॉज गोल्ड ज्वेलरी उनको लगता है कि अभी थोड़ा सा स्लो चलेगा। बट आई कैन से कि बाहर तो लोग ऑर्गेनाइज हैं। हमारे इंडिया में क्या है कि सिल्वर पे ट्रस्ट लाना है, बिकॉज अपने को सिल्वर को मेन स्ट्रीम में लाना है, नहीं कि कोई इंडिविजुअल कुछ ब्रांड्स बेटर काम कर रही हैं। जैसे आज अपने अम्रपाली है, एवरीबडी नो देम, और दी बेस्ट प्रोडक्ट बनाते हैं, अच्छा काम करते हैं। बट हमारी जो पूरी इंडस्ट्री है, रिटेल इंडस्ट्री, उसमें अभी भी सिल्वर पे ट्रस्ट नहीं है। बिकॉज अगर आप रिटेलर्स पे जाओ तो कोई किस परसेंट में माल बेच रहा है, कोई किस परसेंट में बेच रहा है, सिल्वर प्लस लेबर पे चले जाते हैं। हमको अभी प्रोडक्ट चाहिए जिसमें वैल्यू एडिशन हो, और वो हमारे मैक्सिमम रिटेल शॉप्स तक पहुंचे प्रोडक्ट, और रिटेलर उसका मार्जिन ले सके और पूरी इंडस्ट्री उससे ग्रो हो सके। और सिल्वर ज्वेलरी डेफिनेटली एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी नीड है इस इंडस्ट्री को। अच्छा प्रोडक्ट है, प्रेशियस मेटल है, तो हमको सबसे पहले तो इसकी क्या प्योरिटी पे काम करना चाहिए, जिससे कि वो ट्रस्ट बिल्ड हो अपनी इंडस्ट्री में। तो प्योरिटी को फिक्स करना चाहिए, क्योंकि अभी प्योरिटी फिक्स नहीं है। सेकेंडली क्या है कि इसमें वैल्यू एडिशन अपने को बेटर मिल सकता है, तो वैल्यू एडिशन पे काम करना चाहिए। बेचने की जो स्ट्रेटजी है, ये ग्राम से बेचते हैं या बाय बैक पे बेचते हैं, मेरे हिसाब से तो सिल्वर ज्वेलरी कोई बाय बैक के लिए तो बनी नहीं। इट्स मोर फैशन ओरिएंटेड, इट्स मोर डिजाइन एंड फैशन ओरिएंटेड, तो उस पे फोकस करना चाहिए। तो जी 8 ग्राम का एक ब्रेसलेट मैंने आपके यहाँ देखा था, 8 ग्राम का सिल्वर ब्रेसलेट, मैंने उसकी एमआरपी भी देखी है, और न्यूयॉर्क स्ट्रीट पे जाने के बाद में वो क्या रेट में सेल होती है, ये लोगों का माइंड ओपन करने के लिए। मैं आपके प्रॉफिटेबिलिटी पे नहीं आना चाहता। मैं बताऊं कि वो प्रोडक्ट जैसे मान लो अपने यहाँ से $40 में निकल रहा है, एंड दैट इज सोल्ड इन $249, which is, if you calculate, almost is selling in 2000 rupees gram, the product in silver, where the silver is 40 rupees gram at retail. मतलब 20 लाख रुपए किलो सिल्वर की ज्वेलरी सेल हो सकती है अगर आप उसको राइट तरीके से मार्केटिंग करते हैं, पैकिंग करते हैं, प्रमोट करते हैं, और प्यूरिटी और ब्रांड को मेंटेन करते हैं। क्योंकि मैंने अपने आंखों से आपके यहाँ देखा है ब्रांडिंग पर उसको सबको। तो यू सी द गुड फ्यूचर आने वाले समय में भी इसके अंदर। लेकिन उस लेवल पे पहुंचने के लिए हमको बहुत कुछ चेंज करना होगा हमारी इंडस्ट्री में। रिटेल लेवल स्कोप है, लोग कर ही रहे हैं और बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ बहुत चेंजेस की जरूरत है उसके लिए। अभी सिल्वर में क्या है कि हर जहाँ पर क्या वही लेबर वाला कॉन्सेप्ट है। इफ यू सी, हर स्टेट में अलग अलग परसेंटेज में माल बिक रहा है, लेबर में बिक रहा है, बाय बैक में बिक रहा है। ब्रांड बनानी है तो बाय बैक में तो चल नहीं सकती। ओके, तो मतलब कितनी भी बड़ी साइज हो वो एमआरपी पे चल सकती है विदाउट गिविंग एनी स्प्लिट और ये सब। हाँ बिल्कुल, ये आपका एक्सपीरियंस है। ओके, थैंक यू संजय अग्रवाल जी। मैं बताना चाहूंगा कि आज का जो सेमिनार है, ये संजय जी पिछले 8 दिन से बोल रहे थे कि सारे सब्जेक्ट कवर हो रहे हैं, हमारी सिल्वर पैनल को भी कवर होना चाहिए। और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अभी हाल ही के दिनों में मुझे 2 इनविटेशन कार्ड मिले हैं जिन्होंने स्पेशली सिल्वर का बड़ी शोरूम्स बनाई है डेडिकेटेड टू सिल्वर। अभी तक हमने देखा है कि एक शोरूम के अंदर एक पार्ट सिल्वर होता है, कोई करते भी है तो सराफा में जहाँ छोटे छोटे जिनके आप गोल्ड का ज्वेलरी सेल नहीं होती है, वो अपनी सिल्वर ज्वेलरी करके अपना रोज का काम निकालते, पायल बिछिया ये सब सेल करके। तो आपको क्या लग रहा है फ्यूचर के अंदर सिल्वर के अंदर ऐसे और स्टोर आने चाहिए या आ रहे हैं लोग? आपसे कुछ बातचीत करते, क्या आपको लग रहा है इसमें संजय अग्रवाल जी? नितिन जी, आपको पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी एप्लीकेशन पे ध्यान दिया और आपने ये सेमिनार किया, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और इतने ये जो आप पैनलिस्ट लेकर आए, वो माने इतने हेवी पैनलिस्ट हैं कि इनके सामने तो अपने क्या बोलेंगे। तो बहुत इससे कि नेक्स्ट लेवल वो पे चला गया ये। अब जो आपने बताया कि जो नए जो शोरूम्स आ रहे हैं जो डेडिकेटेड टू एक्सक्लूसिव सिल्वर हैं, स्पेशली साउथ में आ रहे हैं इस तरह के, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन काफी बड़े बड़े शोरूम आ रहे हैं जो कि सिर्फ चांदी के लिए ही आ रहे हैं
यहाँ पर सिर्फ आपको चांदी के बर्तन हैं, चांदी के फर्नीचर हैं, चांदी की ज्वेलरी है। तो ये बहुत ही नया कॉन्सेप्ट है और इससे सिल्वर की जो सेल है B2C में और B2B में दोनों में बहुत अच्छी डेवलप हो रही है। प्रोडक्ट का जो उसका जो इंक्रीज हुआ है वॉल्यूम, और आगे हम लोगों को जो रिटेल चेन ऑफ स्टोर्स हैं वो उनको हमको प्रमोट करना चाहिए कि वो इस तरह से शोरूम्स, सिल्वर एक्सक्लूसिवली सिल्वर शोरूम्स को लेकर आने और उससे हम लोग उसके ऊपर वर्किंग कर सकें। और इसी तरह के मैं ये भी चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि नॉर्थ में भी इस तरह के बड़े बड़े शोरूम्स आ रहे हैं जो एक्सक्लूसिवली डेडिकेटेड टू सिल्वर हैं। तो ये पूरे इंडिया में ये कल्चर आ रहा है और ये कल्चर आने से सिल्वर का जो सेल है वो बढ़ेगी और इसमें बहुत मैन्युफैक्चरर्स और होलसेलर्स को बहुत फायदा होगा। और इवन मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो रिटेल चेन ऑफ स्टोर्स हैं वो अगर अपने यहाँ एक एक्सक्लूसिवली सिल्वर का काउंटर भी अगर वो बनाते हैं, अगर वो एक्सक्लूसिवली सिल्वर स्टोर नहीं लेके आते हैं, काउंटर भी रखते हैं अपने यहाँ, तो उससे भी बहुत फर्क पड़ेगा। जैसे कस्टमर अगर उनके शोरूम में आ रहा है, उसको सिल्वर की पायल चाहिए, चांदी का छोटा ग्लास चाहिए, तो उसको कोई दूसरी जगह नहीं जाना पड़े, उसका सब काम वहीं से अंडर वन रूफ हो जाए। ये मेरा सजेशन। वेरी गुड। जयेश भाई, आपने जो ट्रेडिशनल पायल की जो एक परंपरा है बहुत पुरानी है, हजारों साल पुरानी है, और आपने उसको ब्रांड में लाया है। कुछ 1-2 ब्रांड थे पहले, लेकिन वो सब जगह नहीं पहुंच पाते थे, आप भी एक ब्रांड लेकर आए हैं। तो आपको क्या लग रहा है, पायल के अंदर वैल्यू एडिशन मिल रही है और ब्रांडेड पायल को भी लोग एक्सेप्ट करने लग गए हैं, और डिजाइनिंग कितनी फास्ट चेंज होती है, या फिर ट्रेडिशनली चलते आ रही है, उसमें क्या क्या चेंजेस आप देख रहे हैं, खास करके आप जो पायल इंडस्ट्री में आपने कदम रखा है? बिल्कुल सर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू नितिन जी फॉर इनवाइटिंग मी, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू JJC for taking an initiative for conducting this webinar for special silver industry. Thank you. जहाँ तक सिल्वर पायल का सवाल है, जो मैं देखता हूँ सिल्वर इंडस्ट्री में सिल्वर पायल का बहुत बड़ा रोल है। ट्रेडिशनली काफी सालों से चल रही है, सैकड़ों सालों से चल रही है। जब मैं इस बिजनेस में आया था उस समय हम लोग ट्रेडिशनल ज्वेलरी का बिजनेस कर रहे थे, और उस समय मैंने देखा जब मार्केट में कि नॉर्मली जो लोगों का वर्किंग पैटर्न था वो बिल्कुल ही ट्रेडिशनल था, जैसे प्रोडक्ट को टर्न अराउंड करना है, मार्जिन या उनके रेट या क्वालिटी या उसकी प्योरिटी या उसकी डिजाइन्स पे उन लोगों का ध्यान नहीं था, सिर्फ प्राइस पे ध्यान था। और इस बिजनेस से काफी मैं अनसेटिस्फाइड था कि इस तरीके के व्यापार में हम लोग क्या कर सकते हैं जहाँ इनोवेशन नहीं है। हमारी एक सोच बनी कि क्यों नहीं हम इस ज्वेलरी को, जो सिल्वर ज्वेलरी आज सालों से चल रही है यहाँ इंडिया में, इसके अंदर कुछ इनोवेशन लाया जाए। स्पेशली पायल का एक ऐसा फील्ड है कि इसका इंडिया में बहुत बड़ा मार्केट है, बट लोगों को उसके बारे में अवेयरनेस नहीं थी। तो हम लोगों ने इस पायल को कुछ क्वालिटी वाइज, उसकी प्योरिटी वाइज, उसकी गारंटी और साथ में उसके अंदर इनोवेशन, डिजाइनिंग को लेके हम अपने प्रोडक्ट को अपने ब्रांड में लेके मार्केट में हम लोगों ने इसको लॉन्च किया। सरप्राइजिंगली हम लोगों को काफी अच्छा रिस्पांस मिला, और हम लोगों को लगा कि एक्चुअल देयर इज अ ह्यूज स्कोप इन द सिल्वर इंडस्ट्री टिल नाउ। सो it worked fantastically, and nowadays demand is increasing, and still there is lot of scope to innovate the things. So जहाँ तक सिल्वर ब्रांडेड ज्वेलरी में पायल को अगर मैं देखता हूँ तो ये काफी अच्छा इनिशिएटिव रहा हमारा। और अब के जो मार्केट जो अब चल रहा है इसमें भी देख रहे हैं कि सिल्वर के लिए काफी अच्छा स्कोप है, जिसमें हम काफी अच्छा वर्क कर सकते हैं, जहाँ सिल्वर फैशन ज्वेलरी में भी आ चुका है। आज की जो न्यू जनरेशन है वो भी सिल्वर को ज्यादा पसंद कर रही है। जो व्हाइट ट्रेंड है, जहाँ पर गोल्ड को भी रोडियम करके बेचा जा रहा है, जो व्हाइट ट्रेंड है वो सिल्वर में हमको नेचुरली मिल रहा है। तो एवरी फैक्टर इज पॉजिटिव टुवर्ड्स द सिल्वर इंडस्ट्री। थैंक यू जयेश भाई। मेरा अगला सवाल 2 लोगों से है, तरंग और करिश्मा को। नितिन जी, मैं एक चीज शेयर करना चाहूंगा। मैंने आज अरोड़ा जी को सुना, उन्होंने काफी जानकारी दी।
मुझे भी सुन के बहुत अच्छा लगा। एक छोटी सी जानकारी मेरी मैं भी शेयर करना चाह रहा हूँ कि जैसे सिल्वर कहते हैं नेक्स्ट टू गोल्ड, इट्स अ सेकंड प्रीशियस मेटल, लेकिन आप सभी को सुनकर आश्चर्य होगा कि जो भारतीय रुपया है, इंडियन करेंसी, सो रुपया मीन्स सिल्वर, इट इज सोना रूपा, इट इज अ रुपया, रुपया मीन्स सिल्वर। यहाँ इंडियन करेंसी भी हमारी सिल्वर से ही जानी जाती है। बहुत प्लीज कंटिन्यू। बहुत सही बोला सर। ऐसा बोला जाता है जब किसी के बहुत अच्छा दिन चलते हैं तो बोले तो तेरी चांदी चांदी है, कोई ये नहीं बोलता तेरा प्लेटिनम है, गोल्ड है या सोना है करके, चांदी चांदी कहा जाता है। मेरा अगला सवाल दो लोगों से है, मैं दोनों को पूछना चाहूंगा कि ये जड़ाऊ ज्वेलरी भी बहुत सुंदर मैंने देखी है, सुनी है, तो इसका क्या इंडिया में कितना चलन और एक्सपोर्ट के अंदर आप इसको कितना देख रहे हैं, और इसमें क्या फ्यूचर है इसका? मैं पहले तो तरन से जानना चाहूंगा, उसके बाद फिर मैं करिश्मा से सेम चीज पे जानना चाहूंगा। आप नितिन भाई कह रहे हैं जो जड़ाऊ लुक है सिल्वर में, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आई एम ऑडिबल, आवाज आ रही है? या आ रहा जी। नहीं, आवाज कट रहा है आपका अभी। तरन स्विच ऑफ योर वीडियो, योर वॉइस। आपको पहले भी बता रहा था कि मैं ज्वेलरी जो सबसे बड़ा सेगमेंट है अभी बढ़ता हुआ सिल्वर के अंदर, हमको लगता है मैंने आपको पहले एग्जांपल्स दिए कि किस तरीके से डेस्टिनेशन वेडिंग्स होती हैं, उसके अंदर सिल्वर की बनी हुई जड़ाऊ ज्वेलरी बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग वो जो झुमके का मैंने एग्जांपल दिया, पर ये सिर्फ ये एग्जांपल जो लोग फेस्टिवल में पहनना चाहते हैं उस पर्सपेक्टिव से है। पर आप ये भी देखिए कि आजकल की यंगर जनरेशन ये सोचती है कि मैं क्यों नहीं सिल्वर जड़ाऊ की ज्वेलरी पहन के वो क्यों नहीं पहनूं शादी के लिए, क्यों मुझे गोल्ड का 10 लाख रुपए का 7 लाख रुपए का नेकलेस ही पहनना जरूरी है। मैं उसको वापस नहीं पहन पाऊंगी, मैं अपनी लाइफ में उसको 2 बार पहन पाऊंगी, 3 बार पहन पाऊंगी। मैं अगर आज जाके कोई कपड़े खरीदती हूँ जो भी एक्सपेंसिव होते हैं शादी के लिए, उनको भी मैं वापस नहीं पहन पाती। बट अगेन आप उसको सिर्फ स्टोर करते हो, ज्वेलरी को आप वापस पहन ही नहीं पाते, गोल्ड ज्वेलरी को, फाइन ज्वेलरी को, क्योंकि स्पेशली जड़ाऊ, क्योंकि आप शादी के अंदर ट्राई करते हैं सबसे बड़ी ज्वेलरी पहनना, सबसे हेवी सेट्स पहनना, वो आप रेगुलरली नहीं पहन पाते हैं। आपकी फैमिली में 5 साल बाद 10 साल बाद किसी की शादी हुई तो वो शायद कभी निकल के आएगा। लोगों को, यंगर जनरेशन को, मिलेनियल्स को अब ये लगता है कि हम सिल्वर ज्वेलरी में इसको पहने, हमारी इमोशनल वैल्यू हमारे लिए वही है। मैं अपने बच्चों को क्यों नहीं आगे उसको दे सकती या दे सकता कि हमारी शादी के अंदर ये नेकलेस पहनी थी या ये ब्रोच पहना था, ये किलंगी पहनी थी जो सिल्वर में बनी हुई थी उस टाइम पे। आपका सेंटिमेंट वैल्यू तो वही है। तो हम लोगों को ना ही सिर्फ ओकेजनली लोग पहन रहे हैं, बल्कि खुद की शादियों में भी लोग जड़ाऊ ज्वेलरी को बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। बेटर टेक्निक्स निकल के आ रही हैं। हमने कुछ ऐसे कोलैबोरेशंस करे हैं हमारे पास के अंदर, अगर आप देखें जो आम्रपाली मेन ब्रांड ने हमारे किए हैं, रामलीला के लिए किया है, हमने मणिकर्णिका के लिए ज्वेलरी बनाई है, बाहुबली के लिए। तो हम इन सारी अलग अलग तरीके की ज्वेलरी, अलग अलग एरिया की ज्वेलरी बना के जब हम इसको मार्केट में लेके जाते हैं, रिटेल में लेके जाते हैं, तब हमको पता चलता है इसको किस तरीके से लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं और किस किस जगह पहन रहे हैं। कोई कितनी बार हमने एक चीज देखी कि कोई भले ही अगर एक गोल्ड का नेकलेस अपनी मदर का उसने पहन लिया है जो अपनी वेडिंग में पहनना चाहती है, पर वो बोल रही है कि मुझे ये मणिकर्णिका वाला नेकलेस इसके साथ पहनना है, एंड मुझे प्रॉब्लम नहीं है कि मेरी मदर की नेकलेस गोल्ड की है, ये गोल्ड प्लेटेड है सिल्वर का, ये बहुत बढ़िया जा रहा है मेरे नेकलेस साथ, मेरे लुक के साथ जा रहा है, सो आई विल वेयर इट। हम इस तरीके के एग्जांपल्स और देखते जा रहे हैं हम, एंड आई थिंक जड़ाऊ सिल्वर ज्वेलरी के अंदर आगे जाके और ज्यादा इंपॉर्टेंट ही होने वाला। जी गुड। करिश्मा? हाँ जी। जो यंगर जनरेशन है, वो अगर फादर मदर ने डिसाइड किया कि मुझे आपको 20 लाख का या 30 लाख का एक सेट तो देना ही है, कहीं ना कहीं इतनी ज्यादा जो यंगर जनरेशन है वो अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर लेती है कि आप मुझे भले बुलियन दे दो, आप मुझे 4 गोल्ड बार दे दो। मैंने खुद देखा है, मेरे स्टोर में होता है कि मैं 200 ग्राम सोना ले लूंगी, 300 ग्राम सोना ले लूंगी, बट एक सेट मुझे यहाँ से 50,000, 60,000, 70,000 चलेगा। मैं मतलब वो, क्योंकि एक तो जो चीज इन्होंने बोली कि रिपीट, और दूसरी चीज सिक्योरिटी। अब कई लड़कियां मतलब ज्यादा से ज्यादा जो यंगर जनरेशन है वो इतना ध्यान नहीं रख पाती, वो स्ट्रेस नहीं लेना चाहती कि मैं लॉकर में जाऊं, लॉकर से आऊं, उसको संभालूं, घर पे वो रिस्क रखूं,
और फिर सब वर्किंग वुमन है, नई जनरेशन सब लोग काम कर रहे हैं, वो स्ट्रेस भी वो लोग नहीं लेना चाहते और दूसरी चीज सेंटिमेंटल वैल्यू सिल्वर कुंदन में मतलब बहुत ही बढ़ने वाला है, क्योंकि कई लोग ये भी सोचते हैं कि कुंदन और पोल्की में इतना बायबैक है नहीं, तो हम क्यों वो वेस्ट करें, वो भी एक माइंडसेट हो गया यंगर जनरेशन का। तो जितना आप देखेंगे कि जो यंग गर्ल्स आती हैं जिनकी शादियां हैं, इनफैक्ट मदर्स भी बोलते हैं कि मुझे वो पुराना सेट जो मेरे पास पड़ा है वो मेरी साड़ी से मैच नहीं हो रहा या मेरे कपड़ों से मैच नहीं हो रहा, मुझे आपका लाइट पिंक वाला चाहिए या कुछ जो टोटली मैच हो, क्योंकि इतनी फैशन कॉन्शियस हो गए कि 2 साल पहले हमारे घर में शादी थी, वो सेट हमने पहना था, अब हम वो नहीं पहन सकते क्योंकि वो रिपीट नहीं करना चाहते। जो पहले भी बात तरंग जी ने बोली कि वो रिपीट नहीं करना चाहते, हर फोटो में अलग दिखना चाहते हैं, हर ड्रेस के साथ अलग पहनना चाहते हैं, और वो चीज बहुत इजीली सिल्वर में वो लोग अफोर्ड कर सकते हैं और स्ट्रेस भी नहीं है, मतलब टोटली स्ट्रेस फ्री है। और फिर जो प्रहलाद कक्कर जी बोल रहे थे कुछ दिन पहले कि वो जो जनरेशन है वो ट्रैवल करना चाहती है, वो घूमना चाहती है, वो बुलियन ले लेंगे, इन्वेस्टमेंट कर लेंगे, बट एज एन इन्वेस्टमेंट वो ये मानते ही नहीं कि 15-20 लाख का सेट मेरे लिए बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। वो कहीं ना कहीं यही सोचते हैं कि हम सिल्वर का ले लें और इन्वेस्टमेंट कुछ और कर लें या ट्रैवल कर लें। सो ये ज्यादा तो जड़ाऊ और पोल्की का बेसिकली ट्रेंड बढ़ने ही वाला है, उसमें कोई मतलब दो राय है ही नहीं। सही बात है। मैं हमारे अविनाश जी जो है पूरा जो कंट्रोल करते हैं सारे पैनल को, मैं उनसे जानना चाहूंगा कि जो अभी आपने बताया कि लोग बड़ी बड़ी ज्वेलरी में जाने की बजाय कुंदन और उसके जगह पे आजकल इधर आ रहा है, और हमारे अविनाश जी इन अ बिग वे इन द पोल्की कुंदन ज्वेलरी, और अभी 2-3 महीने से उनको एक नया दिमाग में आया कि मुझे एक्सक्लूसिव सिल्वर स्टोर जाना है, तो मुझे उससे रिमाइंड किया, सर आप पैनल में नहीं है लेकिन मुझे अब समझ में आ रहा है कि आप क्यों उधर जाना चाह रहे हैं, आप क्यों अचानक इतने हाई एंड गोल्ड और डायमंड कुंदन पोल्की आप तो सर्टिफाइड सब करते हैं, बड़े बड़े आपके चेन स्टोर को सप्लाई है, लेकिन आप अचानक क्यों सिल्वर में आए? सर मेरे इंस्पिरेशन राजीव जी हैं। ऑनेस्टली आई एडमायर हिम अ लॉट, और genuinely speaking I feel there is a huge gap for good articles and good jewelry in silver today. When I go out, when I see stuff like, for example, आज French enamel हम सुनते हैं, Russian enamel सुनते हैं, India is enamel king, and we are not able to market the way the French enamel or the Russian enamel is marketing. आज आप जाओगे तो वहां पे 800 रुपए ग्राम से 1000 रुपए ग्राम में आज नई ज्वेलरी, नए आर्टिकल्स ऑफ सिल्वर इनामल इज सोल्ड. So I find a lot scope in silver than the gold jewelry business in future to come. Post COVID, now it has become more stronger urge of mine that silver has a huge scope to grow in India. That's the only reason why I am thinking of going into silver articles store. तो स्पेशल स्टोर लेकर आ रहे हैं आप? Yes sir, it will be a standalone silver articles and silver jewelry store. या मैंने ना दुबई से पाटनी जी को देखा था, अभी दिखाई दे रहा है आपको? अनम्यूट कर पाए अपन उनको? शेखर पटनी, ज्वेल ट्रेडिंग कंपनी। यस यस। हाँ शेखर भाई, मैं आपको देखा तो मेरे से रहा नहीं गया, और मैं जब दुबई आता हूँ तो आप तो एक्सक्लूसिव सिल्वर के अंदर है, और मैंने देखा आपके यहाँ तो 1 ग्राम आधा ग्राम से भी आपके यहाँ शुरू होता है, चाहे कपलिन हो, टाइपिन हो या ऑलफिन हो, आप तो ऐसी चीजें रखते हैं जो कभी सिल्वर में किसने सोची नहीं है। क्या लगता है आपको सिल्वर का मार्केट दुबई और इंडिया से इंपोर्ट करते हैं आप या और कंट्री से करते हैं? कितने कंट्री में स्कोप है आपका सिल्वर के अंदर आपको दिखता है? और इंडिया से लोगों को अगर अच्छी चीज है तो एक्सपोर्ट दुबई करते हैं और दुबई से आप पूरे इंडिया में सर्कुलेट कर सकते हैं? नमस्कार सर, मेरा आवाज आ रहा है आपको? हाँ आ रहा है। या ओके। मेरा नाम शेखर पटनी है, और कंपनी नेम इज ज्वेल ट्रेडिंग. लास्ट 30 years we are in Dubai, और we are dealing in the utensils और ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी होलसेल का मेरा गए 20 साल से है। जब भी काफी इंडिया में भी इतना नहीं था, जब भी से हम लोग ये इंडस्ट्री में है, और मैंने काफी नजदीक से ये जो अपनी इंडिया की जो मार्केट है, सिल्वर मार्केट है, उसको भी मैंने देखा हुआ है, और जो फॉरेन की मार्केट है उसको भी मैंने देखा हुआ है। काफी ज्वेलरी हम लोग
बनाते हैं। यूजुअली हम लोग इंडिया से बहुत कम की ज्वेलरी आती है हमारी, लेकिन वी कैन से कि हमारे तुर्की से, चाइना से, थाईलैंड, इटली और डिफरेंट पार्ट से, इवन वंस अपॉन अ टाइम हम लोग अमेरिका से भी हम लोग इंपोर्ट कर रहे थे। तो ये काफी ट्रेंड चल रहा है और चलता रहेगा। लेकिन अपने इसमें काफी ये है कि जो काफी अपने जो डायमंड फैक्ट्रीज है, वो डायमंड फैक्ट्रीज आल्सो दे आर रेडी टू गिव अस द सेम डिजाइन व्हाट दे आर मेकिंग इन द सिल्वर ज्वेलरी आल्सो। तो वो लोग हमको, जैसा हम कभी इटाली जाते हैं तो कोई इटाली में हमको बोलता है कि ये वी आर एक्सक्लूसिव फॉर मेकिंग इन गोल्ड, तो कभी हम लोग उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि हमको 20 किलो का ऑर्डर देना है, तो डेफिनेटली दे आर मेकिंग फॉर अस। सो दैट वे वी आर गेटिंग द सेम design what they are making in gold, the same design we are getting in the silver also. Second thing, अभी सिल्वर का जो ट्रेंड है वो बढ़ रहा है, क्योंकि काफी यूरोपियन कंट्री है या काफी वहाँ पे उनको इतना एक्सपेंसिव ज्वेलरी नहीं पहननी होती है, तो दे आर बाइंग द सिल्वर ज्वेलरी। एंड द सेकंड थिंग, इवन हमारे जो दुबई में रहते हैं या दुबई में जो अमेरिका में रहते हैं या जो अपने इंडियंस है, उनको भी कभी शादी के लिए इंडिया में आना है, तो दे आर फेसिंग द प्रॉब्लम, क्योंकि कस्टम में आज गोल्ड का कुछ आप सामान लेके आओ तो कस्टम में आप उसको स्टक हो जाते हैं, कभी वो ड्यूटी भरने को बोलते हैं। तो दे आर प्रिपेयरिंग द सिल्वर ज्वेलरी कि भाई चलो मैं सिल्वर का ज्वेलरी जो डायमंड जैसा दिखे या मैं कोई अच्छा ज्वेलरी है वो मैं लेके जाऊं। अभी रिसेंटली मेरे घर पे शादी था जयपुर में, तो काफी मेरे दोस्त है, तो उन्होंने मेरे होलसेल शॉप में आए तो देसी कि यार ओ वाह, ये कभी हमने ज्वेलरी देखी नहीं है जो डायमंड की जैसी लगती है। वी आर डूइंग द होलसेल लास्ट 20-30 इयर्स, तो हमारे पास काफी कंट्री से, कोरिया से भी आता है, हर जगह से आते हैं। तो इज रिप्लिका ऑफ द डायमंड ज्वेलरी, सो पीपल आर लाइक टू कैरी बिकॉज देयर इज दे वांट टू सेव कस्टम की भाई कस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं हुए और सस्ता है, इजी टू कैरी है, तो लोग काफी हो जा रहे हैं। सेकंड थिंग, आई एम इन द यूटेंसिल्स बिजनेस आल्सो लास्ट सो मेनी इयर्स। आई एम लास्ट 30 इयर्स से तो मैं यूटेंसिल होलसेल में से लेके हम लोग यहाँ पे हमारा रिटेल शॉप्स है, हम लोग बेचते हैं। तो हम लोग से भी लाते थे हम लोग, या फ्रॉम टर्की आल्सो। जो फिनिशिंग है वो डेफिनेटली अपने उधर का जो फिनिशिंग है उससे काफी अच्छा फिनिशिंग आता है। जो इनका जो फिनिशिंग है वो काफी बहुत अच्छा आता है। और मैंने अपने शेखर जी का वॉइस बहुत ब्रेक हो रहा है, आप दूसरे से क्वेश्चन लीजिए ना। आपका पॉइंट समझ गया शेखर भाई कि फिनिशिंग की तरफ अपने को बहुत ध्यान देना की जरूरत है। मैं राजीव जी से फिर से एक बार जानना चाहूंगा, आप इंडिया को भी भली भांति जानते हैं और आप भली भांति एक्सपोर्ट का भी बिजनेस करते हैं, तो आपको क्या दोनों मार्केट में फर्क दिखता है? और आप एक जो हमारे आज करीब 800 साढ़े 800 लोग यहाँ पर है, क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो कैसे एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं? ये मैं फिर योगी जी से भी सवाल पूछना चाहूंगा संक्षिप्त में, क्योंकि अब हम टाइम के ओर बढ़ रहे हैं। राजू जी, आपका क्या कहना है, क्या फर्क है इंडिया मार्केट में और फॉरेन मार्केट में एक्सपोर्ट में? देखिए, इंडिया इज द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी नाउ। पहले हम सोचते थे कि यूएसए या यूरोप में जाएं, वेस्ट में जाएं और वहां पे हम बिजनेस करें। आज से लगभग 20 साल पहले मेरा 70% बिजनेस एक्सपोर्ट था और मेरा 30% बिजनेस डोमेस्टिक था। अभी उल्टा हो गया है, 70% बिजनेस डोमेस्टिक है और 30% बिजनेस एक्सपोर्ट्स है। तो इसका मतलब ये है कि इंडिया एक बहुत बड़ा ग्रोइंग मार्केट है, जैसे हर चीज के लिए। और अभी जो पोस्ट कोविड, जो अभी कोविड का जो अपना टाइम चल रहा है, जब देयर इज अ लॉट ऑफ इकोनॉमिकल एंड इमोशनल बैकलैश अगेंस्ट चाइना, लोग बाहर चाइना का सामान कम खरीदेंगे एक्सपोर्ट के अंदर, तो बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो एक्सपोर्ट के लिए इंडिया की तरफ आकर्षित होंगी। लेकिन निश्चित रूप से इंडियन डोमेस्टिक मार्केट को हम इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन दिस इज द टाइम, दिस इज द अपॉर्चुनिटी, ये हमारे चैलेंज का टाइम है। वी शुड क्रिएट, वी शुड मेक, इट इज द अपॉर्चुनिटी नाउ। एंड हमको
हमारी ट्रेड प्रैक्टिसेस को सुधारना चाहिए, हमारा क्वालिटी टाइम का कमिटमेंट अगर हम सुधारें तो निश्चित रूप से nobody wants to deal with China now. All the big US companies, because there was a trade war, you know, the tariff war by the Trump administration and Chinese administration. तो आज अमेरिका कंपनी चाइना नहीं जानी चाहती, यूरोपियन कंपनी चाइना जाना नहीं चाहती है। जर्मनी ने 130 बिलियन पाउंड का बिल निकाला है चाइना के खिलाफ कि आपने कोरोना वायरस हमारा फैलाया है। तो जब ऐसी लोगों के दिमाग की मनस्थिति बन रही है तो हमको उस चीज का अभी समय पे फायदा उठाना चाहिए, लेकिन वो खाली व्यापारी के करने से नहीं होगा। इसके लिए हमारी जो ट्रेड बॉडी है उसको सरकार से भी बात करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक कोई कंड्यूसिव फ्रेंडली एटमॉस्फेयर सरकार नहीं बनाएगी तब तक आप एक्सपोर्ट को उतना बढ़ा नहीं पाएंगे। आज की तारीख में हमको चांदी महंगी मिलती है क्योंकि हमको ड्यूटी ज्यादा है, एमएमटीसी आपको समय पे चांदी प्रदान नहीं करती है, तो आप थाईलैंड से, इंडोनेशिया से कैसे आप कॉम्पीट करेंगे? अभी इंडिया वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है चांदी की ज्वेलरी का, चाइना और थाईलैंड के बाद में। इंडोनेशिया भी हमारे बड़े नजदीक के अंदर है, लेकिन इंडिया अभी 2nd या 1st बन सकता है अगर हम, हमारे पुरुषार्थ है वो सारे एक्सपोर्टर्स करें, सारे व्यापारी हम मिलके अच्छी क्वालिटी की बात करें, जैसे शेखर जी अभी बोल रहे थे, और सरकार हमको ड्यूटी में रिडक्शन दे, आने वाले समय के अंदर एक्सपोर्ट को प्रमोट करने की बातचीत करे, हमको मशीनरी सस्ती उपलब्ध कराए, हमको एक लेवल प्लेइंग फील्ड दे, एक बराबर का हम खेल सके आपस के अंदर, थाईलैंड, हांगकांग और चाइना के संग इंडोनेशिया के साथ के अंदर। जब तक वो नहीं होगा तब तक ये पॉसिबल नहीं है। अब मेरा सबसे बड़ा मानना यह है, एक्सपोर्टर जो है ही इज द रियल सन ऑफ इंडिया। क्योंकि जब मैं 82-83 के अंदर यूरोप जाता था, 85 के अंदर, हम थैला टांगते थे अपने कंधे के ऊपर, चांदी भरी होती थी उसमें स्नेक चेन, या राठौर जी बैठे जयेश वहां से कोल्हापुर से आती थी, और उसको हम एक दुकान पे जाके बेचा करते थे। ऐसे हम लोगों ने मार्केट क्रिएट करा है। एट दैट टाइम इंडिया नीडेड लॉट ऑफ फॉरेन करेंसी, हमारा ट्रेड डेफिसिट बहुत खराब था, तो हम लोगों ने, एक्सपोर्टर्स ने हिंदुस्तान को इस लेवल पर लाके खड़ा करा है कि आप क्रूड ऑयल इंपोर्ट करो, आप प्लेन इंपोर्ट करो, आप मशीनरी इंपोर्ट करो, आप अपनी आर्मी के लिए इक्विपमेंट इंपोर्ट करो। किस बिहाफ पे करते हैं? जब एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट करता है और फॉरेन करेंसीज कंट्री में आती है। और उससे भी बड़ी बात है कि सबसे बड़ा सेक्टर है टेक्सटाइल के बाद में ज्वेलरी। 15% ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट इज बाय ज्वेलरी बिजनेस। हजारों लाखों लोग इस इंडस्ट्री के संग काम करते हैं। अगर गोल्ड ज्वेलरी में आपको 50 लाख रुपए का टर्नओवर करना है तो आपको 10 कारीगर चाहिए, और 50 लाख रुपए का टर्नओवर करने के लिए सिल्वर में आपको 100 कारीगर चाहिए। तो हम लोग एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करते हैं। अगर जब हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करते हैं तो सरकार की दिक्कत कम करते हैं, क्योंकि अनएम्प्लॉयड अगर कोई लोग घूम रहे होंगे तो लॉ एंड ऑर्डर के लिए प्रॉब्लम है, वो चोरी करेंगे, वो डाका डालेंगे, वो कोई दूसरे मीन्स करेंगे जिससे पैसा कमा सकें। इसलिए जरूरी है कि हम लोग एम्प्लॉयमेंट देते हैं। जब हम एम्प्लॉयमेंट देने के बाद में अगर सरकार हमको सपोर्ट नहीं करती है तो हम, थाईलैंड में अगर सिल्वर प्राइस हमारे से 15% कम है, चाइना में हमसे 15% कम है, तो कैसे वर्ल्ड मार्केट में उससे कॉम्पीट करेंगे? तो दिस इज द राइट टाइम। इंडस्ट्री शुड रेज द वॉइस। मैं अपने लेवल पे हमेशा कोशिश करता हूँ, मैंने प्राइम मिनिस्टर को लिखा है, फाइनेंस मिनिस्टर को लिखा है, हमारे चीफ मिनिस्टर को लिखा है। आपको मालूम है कि अभी एक सर्कुलर आया कि आप अपनी फैक्ट्री खुली शुरू कर सकते हैं, लेकिन आपके खिलाफ अगर कोई किसी के कोरोना वायरस हो गया तो एम्प्लॉयर के खिलाफ या मैनेजमेंट के खिलाफ क्रिमिनल नहीं राजू जी, मैं उसमें आपको करेक्ट करना चाहूंगा, वो उन्होंने कर लिया है, अभी उन्होंने कर लिया उसको करेक्शन। अभी किसी भी मैं यही कह रहा हूँ नितिन जी, हमने भी वॉइस उठाई, आपने भी उठाई होगी, हमने सब जगह लेटर लिखा, लोगों से बातचीत करी, अब क्लेरिफिकेशन आया है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि इंडस्ट्री को हमको सौतेला व्यवहार नहीं चाहिए, हमको सौतेला व्यवहार नहीं चाहिए। हम कदर करते हैं जितना बड़ा रोल किसान का है। इम्पोर्टेंट बात यह है राजू जी, गवर्नमेंट के पास जाने के लिए जो मैं आपसे सबसे बात कर रहा हूँ, तो उसके लिए हम एक अलग फोरम के ऊपर डिस्कस करके एक कैसा रिप्रेजेंटेटिव बना उस पर हम बात करेंगे। अभी मैं
योगी जी से भी जानना चाहूंगा कि आप इंडिया का मार्केट और एक्सपोर्ट मार्केट, इसमें आप क्या डिफरेंस देख रहे हैं? इंडिया के मार्केट में कंफर्टेबल है या नहीं, या फिर सिर्फ एक्सपोर्ट में कंफर्टेबल है, और क्यों? इंडिया का मार्केट बहुत बड़ा है, ओनली इंडिया में थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत है एट रिटेल। कि एक तो क्या है, यहाँ सबसे बड़ी बात है प्योरिटी, यहाँ मल्टीपल प्योरिटी चलती है, तो एक तो ट्रस्ट फैक्टर वहां टूटता है। दूसरी चीज वैल्यू एडिशन, यहाँ क्या है, जब तक आप सिल्वर ज्वेलरी में वैल्यू एडिशन के साथ काम नहीं करेंगे तो कोई भी नहीं कमा सकता है इसमें, चाहे मैन्युफैक्चरर हो चाहे रिटेलर हो। और डिजाइन सेंस, जो डिजाइन जैसे आज जैसे राजीव भाई साहब कह रहे हैं, अम्रपाली की एक अपनी डिजाइनिंग है, आज उस डिजाइन से ही अम्रपाली को जानते हैं। वैसे हमारे रिटेल लेवल पे हम लोगों को डिजाइनिंग पे ज्यादा जोर देना चाहिए, वैल्यू एडिशन पे काम करना चाहिए, और मेरे हिसाब से सिल्वर ज्वेलरी को स्टर्लिंग 9 to 5 में बिल्ड करना चाहिए, तभी जाकर के यहाँ सिल्वर ज्वेलरी प्रॉपर तरीके से हमको वैल्यू एडिशन के साथ में बेनिफिट दे पाएगी रिटेल। सही है। बात करें एक्सपोर्ट की, एक्सपोर्ट यस अभी कुछ मंथ के लिए हिट होगा, बट देयर इज ए गुड अपॉर्चुनिटी, मार्केट बहुत अच्छा है, हमारे को चाइना का बेनिफिट मिलेगा, हमारा प्रोडक्ट भी यहाँ से अच्छा जा रहा है, एंड देयर आर डिमांड्स, और बाहर मेरे को ऐसा लगता है कि सिल्वर ज्वेलरी का बिजनेस बढ़ेगा। करिश्मा, मैं क्विकली जानना चाहूंगा कि इंडिया के अंदर करते, मैंने बात किया सेलिब्रिटी भी काफी ले जाते हैं, सब ले जाते हैं, तो ये जो इंडियन क्राफ्टमैनशिप है, इसकी डिमांड इंटरनेशनली भी है? कोई एग्जीबिशन वगैरह तुम लोग करते हैं वहां पे, या उसकी डिमांड है, या फिर वो लोग भी ट्रेंड को, या भाई मैन्युफैक्चरिंग होती है, इंडिया की डिमांड बड़ी है, उसके अंदर क्या फर्क है? यानी कि आप बोल रहे हैं कि अगर हम फॉरेन के अंदर भी जाती है, एक्सपोर्ट होती है हमारी, कि सिर्फ इंडिया के अंदर इसका ट्रेडिशन है? नहीं, हम फॉरेन के अंदर भी ऑफ कोर्स लेके जाते हैं, बट जो छोटी एग्जीबिशंस होती है उसमें माल लेके जाना, उसको पूरा एक्सपोर्ट प्रोसीजर बनाना, सिल्वर के लिए उतना ही काम करना पड़ता है जितना डायमंड वाले को अपना एक्सपोर्ट लगाने के लिए करना पड़ता है। तो बहुत ही पेपर वर्क और बहुत ही टीडियस प्रोसेसेस हैं ये, मतलब मेरे को लग रहा है कि एज अ वुमन बहुत डिफिकल्ट हो जाता है एक्सपोर्ट करना, मतलब क्योंकि सारी डिटेल्स हमको देनी पड़ती हैं, स्टोन के कैरेटेजेस देने पड़ते हैं, सिल्वर का ग्राम वेट देना पड़ता है, हर चीज बहुत ही डिटेल में, और इतने वॉल्यूम होता है कि वो एक्सपोर्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट है पेपर वर्क के लिए। वैसे तो एक्सपोर्ट इज इजी, बट पेपर वर्क बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। देखिए, वैसे ये प्लेटफॉर्म जीजेएस का नहीं है, लेकिन हमारे जो डायरेक्टर है संजय जी बहुत डायनेमिक वर्क कर रहे हैं, उनसे भी बात हो रही थी, और हम लोग मिलके, जयेश भाई और सब जो हमारे पूरा है, उनको हम मिलके इसके ऊपर जरूर मंथन करेंगे। राजीव जी को भी मैं उसमें लूंगा। मुझे लगता है कि एक बार मैंने सब लोगों को कवर कर लिया है, और अविनाश जी अगर आप मुझे हेल्प करें, मेरे पास क्वेश्चन बहुत है, लेकिन हमारे क्वेश्चन की बजाय अगर जो लोग इसमें जुड़े हैं उनके अगर कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन है, किससे अगर आप इसको थोड़ा आगे लीड करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है नितिन भाई, एक इम्पोर्टेंट पर्सन इज देयर फ्रॉम सिल्वर ज्वेलरी, Mr. R.S. Gupta from ACPL is also there in the audience today. He wants to speak something. Mr. R.S. Gupta, can you speak? I got an request from Mr. Vishal Gupta. Mr. Vishal Gupta. I think he's not there. ठीक है, तो मेरा first question राजीव जी के लिए है। राजीव जी, India is known for its heritage and ancient jewelry and artifacts. What will you suggest to the young entrepreneurs who are joining the trade today? What is the key which can drive them towards silver artifacts and silver jewelry, which is relevant to Indian heritage and ancient India? What is the main key takeaways which you will like to address to them? Avinash ji, the design is the most important component. Like when there was an earlier question to Tarang about the tribe, and he said that we inspire a lot from tribal designs. So if you see the tribes in Africa, or tribes in India, or tribes in Thailand, in the north Thailand, they all have very similarity in the design. They are very simple. It's a basic design. So if you take Indian traditional motifs, maybe tribal
or traditional or ethnic, and you make a modern contemporary design. So you are not copying what is made, what is produced in Thailand or Italy or China. You are creating your own market, because if you take, say, lotus from our culture, our civilization, whether it's Buddhist or Indian, and if you can make an earring out of it, if you make a lotus earring, which can be very simple and which everyone can wear. So what I say, Indian jewelers, new entrepreneurs, new designers should try to take designs from Indian art, our culture, our history, our monuments, our jalis, our gumbads, whatever they see, what they see around them, and make them to wear, to look international. Your look of the jewelry for export market should be very universal, but the DNA of your jewelry should be very Indian. It should come out from Indian design, and it is possible from Indian designs. We have such huge variety of craftsmanship and designs in this country. Nowhere else in the world you will find so much diversity of designs, from North India to South India. Our temples, our forts, everything gives you lots of designs. Take designs from them, make them good quality, make them simpler, see the market, to whom you want to sell. You want to sell in USA, what people will like. You want to sell in winters, people will not wear anything in the neck because it will be covered. You should use earrings. If you want to sell to Middle East, you will have to make rings, because they are always covered. You will not be able to sell earrings. So you should also know where you are selling, which group, which clientele, which community you are selling. Also, you will have to see what kind of weight, like Italians and Spanish, they like to flaunt. Like Indians, if you have something, we like to experiment, we like to wear it. So it's a huge topic, but very simple. Take inspiration from India and make it world popular, because still I want to know, there's no Indian jewelry brand which is known all over the world, and India can become a jewelry hub, a jewelry manufacturing center, if we all try cumulatively. And I appreciate what Nitin Bhai was saying. We will all try and we'll do something good for the industry soon. Thank you. अविनाश जी, एक मैं आज से 15-20 साल पहले, क्योंकि मैंने भी 2 एक्सक्लूसिव शोरूम्स है मेरे सिल्वर के, और मैं देखता था तो एक छोटी मूर्तियां आती थी अपने इंडियन गॉडेस की, और देखते थे कि इंडिया में बनती थी 25 ग्राम की, और वो चाइना से आती थी 10 ग्राम 8 ग्राम में है। तो मैं कमल से जानना चाहूंगा कि अब वो मूर्तियां इंडिया में बनना शुरू हो गई है या फिर भी डिपेंड है? इंडियन ड्यूटीज और फिनिशिंग चाइना से आती थी, और जैसा राजीव जी ने बताया, मैं भी उसको सपोर्ट करूंगा। ये कोई गवर्नमेंट का फोरम नहीं है कि जितना हम चाइना से इंपोर्ट कम करेंगे उतना हमारा इंडिया की इकोनॉमी स्ट्रांग होगी। कमल, क्या ये सब चीजें भी लाइट वेट में बनाना शुरू हो गया इंडिया में? डॉक्टर कमल, आर यू हियरिंग? 1 सेकेंड नितिन भाई, हो सकता है वो म्यूट पे चले गए हो, 1 मिनट। या कमल जी बोलिए प्लीज। नितिन भाई, it is all done in India now. Companies like Emerald are doing it in a very wide scale, and those all kind of those hollow silver casting is available in India. Okay. राजीव जी, से में बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन रही। अविनाश जी, और कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आगे ले जाइए। यस सर, एक और क्वेश्चन इसके ऊपर ही योगेंद्र जी से है। योगेंद्र जी, आपसे मैं एक चीज ये पूछना चाहूंगा। आज इंटरनेशनल मार्केट, जैसे अभी मैंने बोला कि एवरीबडी नोस कि इनेमल इज पॉपुलर इन इंडिया, बट व्हाई इंडियन सिल्वर is not able to do the kind of enamel in India the way it is done in Russia or in France? See, I think there is a technology difference between the enamel in India and the overseas. We are doing this Italian enamel, which they are doing there, and nowadays, it is all about the brands. Which brand you are working? They have their own DNA. We have to produce for them. So they give us their requirements and we make for them.
मेरा इसी पॉइंट के ऊपर तरंग जी से भी है और आपसे भी है. Is there any problem doing enamel on silver in India? Because technologically आज enamel के लिए हमारे लिए आज it's a huge setup which is there with us. So why there is a problem to do enamel in silver? Because of the costing issue, or because of some other issue we are unable to do that kind of enameling in India? Tarang, if you can answer, and Yogi ji, Yes. can answer on this. Ji, basically the idea, what you're saying is absolutely correct. It should be able to be done in India, but I think what we are doing is the enameling sector, which people are buying on silver in India, is a little more mass, is a little more not as refined, as polished. We haven't done a lot of R&D, and we haven't done a lot of work because we do not know will we be paid the amount which it will take to invest in doing that fine enamel on silver. Silver में जो enamel अभी होता है वो same enamel नहीं है जो gold में होता है, और उसकी technique different है, उसको and it can break easily. It is more fragile in silver. So definitely it is what the market is asking. दूसरी चीज also क्या होता है हमारे यहाँ पे कि कई बार चीजें बहुत जल्दी मल्टीप्लाई भी होती है. The game in silver has always been a mass game. The game in silver has always been how much you can produce, how many stores can sell, so उस कैलकुलेशन के अंदर कई बार जो फाइन एनामलिंग जो एग्जांपल्स आप दे रहे हैं वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है. If silver is done in a luxury way, sold through a luxury channel, sold through a luxury presented in a luxury manner, जो हमारी कंट्री के अंदर हमेशा गोल्ड को ही दिया जा रहा है या फाइन ज्वेलरी को दिया गया, but at the moment what you are saying is absolutely correct. उस तरीके का अभी हम नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पे इंडिया के अंदर. योगी जी, you want to add something? जो तरंग जी ने कहा बिल्कुल सही कहा कि जो सिल्वर ज्वेलरी में उस तरह का एनामल हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज एक तो मेरे हिसाब से प्राइस बैंड भी है पहली चीज. दूसरी चीज जो इंटरनेशनल मार्केट में जिस तरह की एनामलिंग चलती है वो थोड़ी सिंपल चलती है, यहाँ थोड़ी इंटीग्रेटेड थोड़ी डिजाइनिंग वाली चलती है, तो यहाँ तो इस वजह से वो फिजिबल नहीं है सिल्वर में करना. Okay. Now there is one more question, sir. It is to Karishma ji as well as this Tarang ji can answer on this. Definitely, silver jewelry is being promoted now as a fashion accessory. So, do you think it is going to be very easily targeted to millennials, because millennials are the main buyers in India now, and everybody's focus is on millennials. So, what's your call, and how you find to attract them towards silver jewelry? So, Yeah. for us, sorry, you go ahead. No, go ahead. So basically, जो मैं पहले भी बोला था अविनाश जी, the idea of tribe was that the idea of tribe was to be accessible. The idea of tribe was कि किस तरीके से we make it not very expensive, make it more accessible. Amrapali also does silver, tribe Amrapali also does silver. They are two separate tribe के अंदर हम वो चीज कर रहे हैं जो शायद थोड़ी सी ज़्यादा mass produce हो सकती है, which is not. This is the main thing which I think is required today. अपन पहले भी we were talking about this, and आपने कहा कि travel experiences, या नितिन भाई ने कहा कि travel experiences, और इन चीजों के अंदर लोग spend करना चाहते हैं, करना चाहेंगे, and this is what the millennials want. So you have to understand that we are silver jewelry, giving it a price point, giving it accessible to them is going to be only an experience, or related to be more an experience, and then the second part is the jewelry itself. तो आप experience दे पाएं, आप साथ में उसके अच्छी designs दे पाएं, आप sustainability जो आजकल बहुत important topic है उससे आप क्या कर रहे हैं वो दे पाएं, किस तरीके की आप marketing कर रहे हैं, आप किस तरीके से अपने product को how to take care of your product detailings क्या दे पाएं. I think these are the sort of things which create an experience, and that is the experience what millennials are also looking for when they are buying their piece of jewelry. Karishma ji. हाँ जी.
एक तो ये है कि जो यंगर जनरेशन है उसकी रिक्वायरमेंट्स और उसकी जो माइंडसेट है वो उनको लेटेस्ट मोबाइल भी चाहिए, लेटेस्ट लैपटॉप भी चाहिए और उनको ज्वेलरी ऐसी चाहिए जो बार बार रिपीट वैल्यू, मतलब वो 10 चीजें खरीद सके। वो एक चीज खरीद के 2 साल उसको नहीं पहन सकते। तो इसीलिए सिल्वर ज्वेलरी बहुत अट्रैक्टिव है, भले वो सीजेड में हो या वो ट्राइबल हो या वो हर तरह की सिल्वर ज्वेलरी जो न्यू जनरेशन है। और प्लस मैंने जो पहले बोला कि उनको सेफ्टी है, उनको सिक्योरिटी है, उनको पता है कि मैंने लेटेस्ट मोबाइल भी ले लिया, 2 इयररिंग्स भी ले लिए सिल्वर के, और अगर सिल्वर बुलियन है तो सिल्वर फाइन ज्वेलरी में आता है। कई लोग सोचते हैं कि सिल्वर की ज्वेलरी कॉस्ट्यूम ज्वेलरी है, कहीं ना कहीं सिल्वर फाइन ज्वेलरी। थोड़ा थोड़ा जब मैं अपने कस्टमर्स को बोलती हूँ कि प्लीज आप पहले तो ये समझ लीजिए कि सिल्वर 9 to 5 की जो ज्वेलरी है वो फाइन ज्वेलरी कैटेगरी में आती है, और जो कॉस्ट्यूम ज्वेलरी है वो कॉस्ट्यूम ज्वेलरी जिसमें सिल्वर नहीं यूज होता। तो अगर हम उसको थोड़ा फाइन ज्वेलरी में प्रेजेंट करें तो यंगर जनरेशन बहुत इजीली कन्विंस हो जाता है कि ठीक है, मैंने ये भी खरीद लिया और मेरे पास डिफरेंट एवेन्यूज के लिए बजट है, और रिपीट वैल्यू भी, मतलब मैं 10 चीजें अलग ड्रेसेस के साथ पहन सकती हूँ। तो ऑफ कोर्स 100% जो न्यू जनरेशन है वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है। Okay, now one more question. What is the call of the panel post-COVID? Because post-COVID, how much business growth you guys are looking at in silver jewelry? Because post-COVID, what's the call of the panel? I just want to ask this question because this was being asked by people. Anyway, I think post-COVID, the eyeing jewelry is definitely going to go a little slow. But again, silver jewelry जो accessible है, price point होती है, वो definitely sell होएगा। हमने सबने अभी recently पढ़ा था अर्मेस स्टोर ने किस तरीके से सेल करी चाइना के अंदर जब उन्होंने पोस्ट कोविड। मैं ये नहीं कह रहा कि ये इस तरीके का कुछ होएगा इंडिया में, बट आई डेफिनेटली वुड लाइक टू से कि थिंग्स पीपल विल गेट आउट ऑफ कोविड, पीपल will get to normal life and they would want to go and shop, they will try and lead a normal life कि हम किस तरीके से, and they will try and satisfy themselves जो घर पे बैठे इतने दिनों तक, उसके लिए अब हम बाहर निकल के किस तरीके से अपनी शॉपिंग सेटिस्फाई कर पाए। एंड ऑल्सो आई थिंक वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, पीपल आर गोइंग टू स्टार्ट लिविंग इन टुडे। लोग सोचेंगे कि मुझे आज किस तरीके से रहना है, मैं उस तरीके से रहना चाहता हूँ, मुझे पता नहीं कल का क्या होएगा क्या नहीं होएगा। So that is the kind of mindset I think which is going to happen in post-COVID. Business will get back to normal. It will definitely grow. I think it can take a little longer. एक बार we will get a very good push is what I feel. संजय भाई, आपका क्या कॉल है इस पे? अविनाश जी, मेरा ये सोचना है कि पोस्ट कोविड जो चाइना से जो इंडस्ट्रीज अब सब इंडिया में जो शिफ्टिंग हो रही है सारे अदर सेक्टर्स में, वैसे जेम्स एंड ज्वेलरी में भी जो सिल्वर आर्टिफैक्ट्स है उसके ऊपर मैं फोकस करना चाहता हूँ कि सिल्वर आर्टिफैक्ट्स की फैक्ट्री अगर हम लोग इंडिया में लेके आते हैं यूटेंसिल्स की, तो हम लोग उसके अंदर बहुत अच्छा काम कर सकते हैं और बहुत अच्छा बिजनेस मिल सकता है। क्योंकि जो चीज हम यहाँ पर 100 ग्राम का ग्लास बनाते हैं, अगर हम वो टेक्नोलॉजी और वो चीज हम इंडिया में लेके आते हैं तो वही सेम साइज का ग्लास, सब कुछ सेम, उससे 100 गुना ज्यादा अच्छी फिनिशिंग हम 40 ग्राम में बना सकते हैं। तो वो चीज अगर पोस्ट कोविड, क्योंकि हर आदमी अब चाइना से इंडिया शिफ्ट होना चाह रहा है हर एक इंडस्ट्री में, तो हम लोगों को भी इसके अंदर प्रयास करना चाहिए और गवर्नमेंट से उसकी जो भी सब्सिडी मिल सकती हो मशीनरी वगैरह लाने के लिए, उसके ऊपर हम लोगों को रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए। ऐसा मेरा अविनाश जी, आरएस गुप्ता जी इनको हम खुद पैनल के अंदर लाने की कोशिश कर रहे थे पर कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। इनको मैंने बहुत ट्राई किया। विशाल जी, आई हैव अनम्यूटेड यू। मैं आरएस गुप्ता बोल रहा हूँ फ्रॉम ट्रेडिंग ऑर्नामेंट, दिस इज एसीपीएल ग्रुप। आप सब लोग जानते होंगे कि वी आर एक्चुअली वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर्स फ्रॉम इंडिया, और हमारा बिजनेस 1948 से चालू हुआ था, तो वी आर ऑलमोस्ट 70 years old। मेरा एक कहना है कि सारे वर्ल्ड का अगर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट देखा जाए तो इंडिया का शेयर इज नॉट मोर देन 1 or 2%, एंड दिस इज फैक्ट। तो हम लोग सोच सकते हैं हमारा कितना बड़ा पोटेंशियल, हम मतलब वी हैव अनलिमिटेड पोटेंशियल।
तो इसमें मेरे जो 2-4 पॉइंट ये हैं कि हमारे नॉर्मली जेमन ज्वेलरी का मोर फोकस है डायमंड ज्वेलरी, मोर फोकस है गोल्ड ज्वेलरी। सिल्वर पे कोई ज्यादा फोकस नहीं करते हैं, जबकि सिल्वर में एडिशन इज मे बी आई थिंक मोर देन 50%। हमारा तो भी समटाइम डू इवन 100-150% वैल्यू एडिशन। तो मेरा मतलब है अगर जेमन ज्वेलरी थोड़ा फोकस करे तो इस इंडस्ट्री का बहुत ही ग्रोथ हो सकती है। अभी देखिए जितना हमारा टोटल एक्सपोर्ट है इंडिया से और जितना मैन्युफैक्चरिंग है उससे ज्यादा माल चाइना से आता है इंडिया में। गलत हम उसी को रोक सकते हैं, क्यों ना रोका जाए? क्यों? हमारी क्वालिटी भी एक्सेप्टेबल है, सब कुछ एक्सेप्टेबल है, लेकिन थोड़ी जो प्रॉब्लम है अपने पहले एक्सपोर्टर्स ने कहा है, एक तो प्योरिटी का बहुत बड़ा पॉइंट है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ जो प्योरिटी 60-70-80 तो लोगों को ट्रस्ट नहीं है। तो दूसरा एक चीज को ऐसे उपाय किए जाए कि भाई प्योरिटी मेंटेन की जा सके, क्वालिटी ऑलमोस्ट एक्सेप्टेबल है लेकिन क्वालिटी और इम्प्रूव की जाए और डिजाइन्स में थोड़ा और की जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वी कैन क्रॉस चाइना। हम लोग 10 टाइम्स मोर एक्सपोर्ट कर सकते हैं और मैं सजेस्ट करूंगा कि हमको इसका एक सेमिनार करना चाहिए। एवरीबॉडी दिस इज द गुड टाइम टू थिंक अबाउट दिस मैटर। और माफ कीजिएगा मैंने गाड़ी बढ़ा रखी है, तो इसीलिए बढ़ा रखी है कि कोरोना से नहीं है। दूसरा लेटेस्ट ट्रेन है, आप ट्रेन के साथ चल रहे हैं गुप्ता जी आप? मैं बता रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि भाई बहुत अच्छा टाइम है, हम लोग इस पर डिस्कस करें। और पॉइंट ये है कि अभी ये सब बातें करने से पहले हमें तो ये सोचना चाहिए हम सर्वाइव कैसे करें ये क्राइसिस में। गवर्नमेंट को कुछ कम फॉरवर्ड टू सम पैकेजेस हमारे जेमन ज्वेलरी हम सबको फर्स्ट करना चाहिए गवर्नमेंट से, इस इंडस्ट्री में कैसे सर्वाइव करें। लाखों आर्टिशियन इन्वॉल्व है इसमें, देखिए वो तो कॉन्ट्रैक्ट रेट पर काम करते हैं, नॉट सैलरी। तो हमारा सबसे बड़ा इशू है इस वक्त टू सर्वाइव दिस इंडस्ट्री। अगर ध्यान नहीं किया गया तो इंडस्ट्री बहुत कोलैप्स करेगी, इसलिए सब लोगों से थैंक यू वेरी मच। यस, नितिन भाई। हाँ, मोहनलाल जी को 10 सेकंड के लिए आना चाहते हैं। मोहनलाल जी को अनम्यूट कर दीजिए और फिर हम इसको सम अप करते हैं। हम लोग ऑलमोस्ट टाइम पूरा हो गया है। मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ सिल्वर यूटेंसिल्स में। हेलो, हाँ मोहनलाल जी सुन रहे हैं हम आपकी बात, बोलिए। सिल्वर यूटेंसिल्स में जो फ्रेजर और रेविसेंट है, हम लोग टेक्नोलॉजी में कहाँ लैक है? और एक बहुत मैसिव लास्ट 2-3 साल से देख रहा हूँ कॉर्पोरेट गिफ्ट में सिल्वर गिफ्टिंग का बहुत बड़ा स्कोप है, इसको कैसे टैप किया जाए? और कॉइन्स की बहुत बड़ी डिमांड है, कॉइन्स में कैसे प्रॉफिट किया जाए? कॉर्पोरेट में जो सिल्वर की डिमांड निकली है गिफ्ट्स में, उसको टैप करना कैसे करें डोमेस्टिक? और फ्रेजर एंड हॉस की टेक्नोलॉजी और अपनी टेक्नोलॉजी में क्या फर्क है उनकी यूटेंसिल? आप ये क्वेश्चन किन से पूछना चाहते हैं पैनलिस्ट में? पहले जहांगीर जी से पूछेंगे, फिर अरोड़ा जी से या करिश्मा जी से। चलो, नहीं करिश्मा जी का तो कॉइन से और यूटेंसिल से कोई लेना देना नहीं है। 200-300 कॉर्पोरेट गिफ्ट्स। कमल, would you like to answer? The corporate sector, you need to incorporate a lot of newer machines, newer technology in this business, and skilled workers. Skilled workers is the need of the day. So we need to have a good institute for managing this kind of resources. This is my realization, and we need to upgrade our system of working. We need to get higher Italian machines to work on CNC machines, CAD machines, laser machines for engraving and better accuracy. So all this will help. We can definitely come up to that standard of Fraser and Hawes and Ravi-san and everybody. It's not a big deal at all. Yes. On this, I will comment Nitin bhai. Okay. Unless and until whether it is gold or silver, we need to change our mindset that it is a commodity. Till the time we are not ready to pay the price, we are not going to get the quality. If, today, what Fraser and Hawes sells or what Ravison sells, the price difference what we sell in Indian normal stores and what Ravison or what Fraser and Hawes sells is totally different. That is where the difference lies. So if people are ready to pay the price, they will get the quality, I think.
Naturally, we will get technology also at Avinash good ji, prices. Can I speak? Ashok bhai, yes. Ashok bhai, Most yes. welcome. Okay. I think I'm enjoying this session. I thought I would have kept myself quiet all the way, but I could not resist but talk. Okay. We are looking at the high-end stuff in silver, which I think we talking of Fraser and Hawes and various things. Are you aware that there is a place, there is a factory in Porbandar at the end of Gujarat under the name of Vishwakarma Engineering? That family is called Gajjar. And those people are manufacturers of articles of silver. And they have been manufacturing for the past 100 years. And their products are of the standard of the topmost brand that you can talk of in the world, compared to a Cartier or a Van Cleef & Arpels or a Bulgari. And if you look at the articles they make, even today they had shut down for a few years due to a family issue. They have restarted the whole thing. It is entirely based on engine turning, and the finish of the product, the locking mechanism, and for every single thing that you can imagine, it's unbelievable. I have a huge collection of this silver jewelry with not as jewelry, the articles with me. And I can tell you one thing, salute to that group of people who can do this, and they have restarted it. So anybody interested, they can contact them. Of course. यस अशोक भाई, जैसा आपने कहा है, हम अभी समय अपना पूरा हो गया है, लेकिन एक मैं खाली 45 सेकंड में बताऊंगा। मेरे पास में एक एनआरआई कस्टमर हर साल आते हैं जो अकोला में उनका रहते हैं, महाराष्ट्रियन फैमिली है। वो लोग मेरे पास में एक पेंडेंट सेट लेके आए, टिफनी का फोटो लेकर आए, और उन्होंने बताया कि मुझे व्हाइट गोल्ड और डायमंड में बना के चाहिए। तब तक मुझे भी नहीं पता था कि ये सिल्वर में है। मैंने उनको बनवा के दे दिया, उसका कॉस्टिंग है 28,000 ओनली, 10-10 मिली का 10-10 सेंट के डायमंड थे। और जब बना के दिया तो उन्होंने प्राइस निकाला, बोले खंडेलवाल जी, सोचा टिफनी में और आपके प्राइस में बहुत फर्क आ जाएगा, लेकिन बहुत फर्क नहीं है, आप सिर्फ 10,000 रुपए सस्ता दे रहे हैं, टिफनी का फिनिशिंग तो आ गया है। मैं बोला ऐसा तो नहीं होना चाहिए, टिफनी का तो बहुत कॉस्टली, बहुत वैल्यू एडिशन होता है। जब जाके उसके डिटेल में गए तो पता लगा कि वो सिल्वर में बनी थी और मैंने उनको व्हाइट गोल्ड में सब किया था। तो सिमिलैरिटी उसके अंदर आती है और हम बना सकते हैं। मुझे लगता है कि हम अभी सबका धन्यवाद करें, क्योंकि हम टाइम पे शुरू किया और टाइम पे पूरा करना चाहते हैं। काफी सारे क्वेश्चंस हैं और मुझे एक लर्निंग मिली है, और आज जो जिस तरीके से इंफॉर्मेशन सब लोगों ने की है, और इसका हम सिनॉप्सिस बना के ग्रुप के अंदर आप लोगों को भेजेंगे। टाइम कंसर्न से मैंने पॉइंट्स लिखे, लेकिन मैं सारे पॉइंट्स अभी कवर नहीं करूंगा। मैं शुरू में धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे जो संजय अग्रवाल जी है, जिन्होंने पिछले 5-7 दिन से इनिशिएटिव लेना चाहा कि चांदी में भी होना चाहिए। हमारे लिस्ट में सभी थे, लेकिन हमने उसको किया है। जयेश जी, जिन्होंने इसको पैनल को पूरा करने में हम लोगों को हेल्प करी है, खास करके करिश्मा ने तो करिश्मा ही बातें हम लोगों को आज बताई है, और मुझे पता है उनसे बहुत कुछ सुना जा सकता है। हमने बहुत शॉर्ट में उनको सुना है। मैं फिर चाहूंगा कि कभी एक हमारे और कोई प्लेटफॉर्म पे आपसे सुने। कमल जांगीड़, जिनको मैं 3 जनरेशन से तो मैं जानता हूँ, उनके दादाजी पिताजी को मुझे भी 40 साल हो गया, और अच्छे इनपुट्स दिए इंडस्ट्री से लेके सभी चीजों में, क्योंकि ज्वेलरी के बारे में, यूटेंसिल्स के बारे में तो सब जानते थे। योगेश जी, खास करके मैं इनका विशेष धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि योगेश जी को लाने के लिए मुझे काफी उनको बोलना पड़ा, क्योंकि वो पर्दे पे आना नहीं चाहते, काम बहुत करते हैं। उनकी फैक्ट्री भी मैंने देखी है। और तरंग अरोरा जी, यंग डायनेमिक, और मुझे लगता है कि एक यंग बच्चों का एक स्पेशल सेशन किया जा सके, जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है, और स्पेशली आप लोगों के साथ में बैठ के उनको मिलाया जा सकता है, ताकि वो आप लोगों से बहुत अच्छी इंस्पिरेशन लिए। और बहुत प्राउड फादर है आपके राजीव जी, और राजीव जी से तो जितनी बार मिलते हैं हम लोग, जयपुर में भी मिलते हैं और जगह पे मिलते हैं, उनको सुनने में अच्छा लगता है। मैंने उनको अदर सब्जेक्ट पे भी टीवी पे देखा है। बड़े पॉलिटिशियंस है, सक्सेसफुल है और क्लीन इमेज है। ऐसे लोगों को लेके बहुत प्राउड फील होता है। मैं अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि देखिए, आप सब लोगों ने, और खास करके अशोक भाई और अविनाश जी, संयम, हम सब लोगों ने मिलके इसको जो माइंड स्पीक को बनाया है, बड़ा रोल जिसके अंदर अशोक भाई का है। तो अशोक भाई, एक चीज मुझे रियलाइज हुई है कि दृष्टि का अगर ऑपरेशन करना है तो आपको ऑपरेशन थिएटर में जाना पड़ता है, लेकिन दृष्टिकोण के लिए आपको किसी ऑपरेशन थिएटर में जाने की जरूरत नहीं है।
आपका नजर का ऑपरेशन करने के लिए कहीं भी जाओ, लेकिन नजरिया बदला जा सकता है अगर हम ये माइंड स्पीक को अटेंड करते हैं। और ये जो नजरिया है वही बदलने की हम लोगों को जरूरत है। जो पूरे पैनल आज आए हैं, काफी कुछ सुनने की और इच्छा थी, मन में आशा अभी होता है। फिर से हम एक बार इसमें मिलेंगे। आप लोगों को एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि कल जो माइंड स्पीक में जो हमारे स्पीकर है वो है जगदीश जोशी है। बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर है, करीब 30 कंट्री के अंदर जाते हैं। उनकी कई किताबें हैं, मैंने उनकी कई बुक्स भी मैंने उनकी पढ़ी है मेरे लाइब्रेरी में। और कल के जो स्पीकर है, मैं एक आग्रह और करना चाहूंगा कि कल के स्पीकर को आप फैमिली के साथ में सुनिए, क्योंकि अभी जो सब्जेक्ट होते हैं वो टेक्निकल होते हैं। मे बी आपकी फैमिली उतनी इंटरेस्टेड नहीं हो, उतनी इन्वॉल्व नहीं हो, लेकिन कल आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में उसके अंदर आइए। बहुत बहुत मैं धन्यवाद दूंगा माइंड स्पीक ग्रुप की ओर से। अशोक भाई, लास्ट आपके कोई कमेंट्स? Sir, thank you very much for conducting a wonderful session. Thank you very much. थैंक यू सर। आपके से तो नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश करिए आपसे सीखने और करने की। थैंक यू अविनाश जी। थैंक यू एवरीबॉडी। Thank you, करण जी, Ashok bhai, जी, Nitin bhai, and कमल all जी, the panel जयेश team. जी, Thank you. करिश्मा जी, Thank you so much. Thank Thank you. you so much for having me. Thank you so much, sir. संजय Ashok भाई, bhai, for thanks a having us lot. over here. थैंक्स। Thank you once again, all of you.